can start straight away. जी ज़ीशान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome you all in exam focused revision sessions May 2023. Today we are conducting the first of 4 sessions on CFAP 3, which is strategy and performance measurement. The timing of today's session would be from 6:15 p.m. to 9:30 p.m. with necessary breaks which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comments section. The material being used today will be available through a link in comments section of this video. The link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Sir Irfan Qadir with us for these sessions. Sir Irfan is a renowned teacher in CA fraternity. He has more than 37 years of teaching experience. He has done MS in Strategic Financial Management and MCom with gold medal from University of Punjab. He is affiliated with various professional accounting bodies, universities and banks. He is currently associated with one of REIT at Lahore. He also served as Dean of Management Sciences and was responsible for overall academic affairs at a renowned university. His area of interest are accounting and finance, and the subjects are financial management, corporate finance, budgeting and forecasting, investment appraisal, advanced financial management, international finance, financial accounting, and management accounting. He is teacher of many teachers who are currently teaching various subjects of CA fraternity. Without any further ado, please welcome Sir Irfan Qadir. Sir, over to you. Just give me 1 minute to share the file. बस ये चाहिए मुझे. इसको शेयर करना है. शेयर हो गया नहीं यार Thank you very much, sir. Thank you for your kind words. Indeed, it's a very good opportunity for me to interact with the students for this subject. और मेरे experience के मुताबिक ये जो subject है SPM, being theoretical in nature, इसको unfortunately students जिस तरीके से approach करते हैं, मेरी कोशिश होगी कि इन 4 सेशंस पर मैं उस एग्ज़ामिनेशन अप्रोच पे बात कर सकूं.
बीइंग थ्योरेटिकल इन अप्रोच, एक ये भी आ जाता है कि हम इसमें पास पेपर्स को सिर्फ पढ़ लेते हैं, बुक को रिव्यू कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते। तो मेरी कोशिश यही है कि हम यहाँ पर इसी चीज़ पर फोकस करें, हाउ टू अप्रोच SPM paper. There are two basic reasons which I feel which cause for either success or failure. One, the knowledge, and the second is the examination approach. इतने सालों में मेरे नहीं ख्याल कि जब पहले ये सब्जेक्ट BMS के तौर पर था, कोई भी स्टूडेंट अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज की वजह से सब्जेक्ट में रहता हो। ज़्यादातर जो मुझे वजह मैंने देखी वो एग्जामिनेशन अप्रोच में गलती थी। वी आर नॉट एबल टू हैंडल द सिनेरियोस, उसके कंटेंट्स को कैसे हैंडल करना है, उसका प्रोफाइल कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे उस कंटेंट्स को हमने यूज़ करना है, उसमें प्रॉब्लम आता है। तो पहले तो मैं आपसे जल्दी से एक बात करूंगा कि व्हाट आर द मेजर रीजंस व्हिच आई हैव फाउंड व्हिच कुड बी द रीजन फॉर फेलियर और सक्सेस। द फर्स्ट इज द थॉरो स्टडी ऑफ द कोर्स मटेरियल, द ICAP बुक। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्पॉटिंग कर रहे होते हैं, एक चीज़ छोड़ दें, दूसरी चीज़ छोड़ दें। नेचुरली हमारे पास कोई 800-900 सफ़े हैं, हम सारा कुछ नहीं देख सकते, बट वी शुड नॉट डू स्पॉटिंग। आज मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ तो आप देखिए 3 मार्क्स का पेपर, वो कहीं क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे सकता है। तो पहली चीज़ तो बेटा ये ख्याल रखें कि हमने स्पॉटिंग नहीं करनी। वी शुड हैव अ थॉरो रिव्यू ऑफ द एंटायर बुक। वो किस तरीके से करनी है उस पर भी मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। दूसरी है द कंसेप्चुअल अप्रोच। जब ये सब्जेक्ट BMS में था तो इसका पेपर का जो कॉम्पोजिशन था उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते थे और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आते थे। अब ये पेपर 100% सिनेरियो बेस्ड है, इसमें अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एक साउंड थ्योरेटिकल अप्रोच हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हैंडल करने में मदद देती है। तो एक तो वो सीनियर्स आपसे जो BMS इसको कर चुके हैं उनकी ये अप्रोच कि जी अब थ्योरी बेस आती है, बुक को रिव्यू कर लें। तो बेटा ख्याल रखिएगा कि बुक को रिव्यू करना और एक थ्योरेटिकल अप्रोच रखना अब इस सब्जेक्ट के लिए सही अप्रोच नहीं होगी। वी शुड हैव अ कंसेप्चुअल अप्रोच, वी शुड हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट्स टू हैंडल द केस स्टडीज। प्लस ये भी याद रखिए कि इसके बाद आपका जो एक है दैट इज MSc2, whatever you will learn here about how to handle a case study, that will help you in that subject of MSc2. Then another is practice handwriting. Unfortunately student क्या करता है, वो पुराना पेपर और पास पेपर्स पर ले उसको पढ़ा and he thinks I have understood what I want to do. वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करता। Mark my words, beta, reading the past paper and actually solving it, there's a heck of a difference. Put yourself to practice. At least 1 or 2 past papers, you must solve it by hand. Practice handwriting. You must know how to handle, and you must know how much time you are taking to handle a question of that size. इसमें अगर आप लास्ट मेरे पॉइंट देखें, यू मस्ट अटेम्प्ट 100% पेपर। इट्स अ वेरी डिसकर्टियस कि एग्जामिनर इतना टाइम ले इसका सोल्यूशन बनाने में, क्वेश्चन पेपर बनाने में, और हम एक इनकम्प्लीट पेपर छोड़ दें। वी मस्ट हैंडल 100% पेपर, और वो उसी वक्त होगा जब हमने स्पॉटिंग नहीं की हुई, वो उसी वक्त होगा कि हमारे पास लिखने का एक फ्लो है और हम मुकर्रा वक्त में जो भी 6-7 क्वेश्चंस पेपर में दिए गए हैं उसको इफेक्टिवली हैंडल कर सकते। यू मस्ट नो हाउ मच टाइम यू टेकिंग टू हैंडल द पेपर ऑफ दैट साइज। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी एबल टू यूज द फैक्ट्स गिवन द केस स्टडी। आज मैं आपके साथ जो विंटर का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, विंटर 2022 का,
स्पेशली जो इसमें नया एरिया शामिल किया गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, जिसमें आपको कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसको कैलकुलेट करना है, कुछ कैलकुलेशंस करना है. मार्क माई वर्ड बेटा, what he has given you is not a story. It's a scenario full of facts. You must know what are those important facts. और उन सारे फैक्ट्स को अपने सोल्यूशन में कवर करना ज़रूरी है. आज मैं जब आपके साथ उसका मार्किंग क्राइटेरिया हूँ तो आप देखिएगा कितना ज़रूरी है कि हर फैक्ट को समझना और उसको अपने सोल्यूशन में इस्तेमाल करना. क्योंकि उसके पास जो मार्किंग क्राइटेरिया है उसमें उसने कैटेगोरिकली लिखा हुआ है व्हेन आई विल गिव यू द मार्क्स, यू स्किप वन फैक्ट एंड यू विल लूज सम मार्क्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द फैक्ट्स गिवन इन द केस स्टडी. प्लस अब ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का इसमें हिस्सा है जो हर पेपर में अब आ रहा है, आई से दिस इज अ न्यूमेरिकल पेपर. You can score just like a numerical paper in those questions. I'll come to the solution in later part. Then, another major problem has been कि जो students बच्चे लिखते हैं आंसर वो suggestive होता है. बेटा CFAP level पर your answer should not be suggestive, it should be conclusive. If he has asked you which competitive strategy you should use, you should not give suggestion, you should be conclusive. What is the difference between suggestion and conclusion? Conclusion is जहां आप अपनी suggestion को facts से, reasoning से साबित कर दो कि जी हम ये वाली strategy use करेंगे. भाई क्यों use करेंगे, क्या logics हैं इसके पीछे. तो मेरी बात को इसको गौर से समझना और अपने solutions में ढूंढना. Don't leave your answers suggestive, they should be conclusive. What is conclusion? Suggest and then support it with the facts given in the case study. Okay, this is what I say, this is what we should be doing. And आज जब मैं questions आपके साथ पेपर हल कर रहा हूँ, आपको मैं वहाँ साबित करता चला जाऊँ, बताता चला जाऊँगा, look, this is where we have been conclusive now in our response. Then avoid story writing. Don't repeat the words given in the paper. Don't write story. रिमेंबर आपके आंसर में 3 चीजें होनी चाहिए बेटा. फैक्ट्स, अफेक्ट्स, कंक्लूजन. डोंट राइट स्टोरी. रिडंडेंसी नहीं हो. आई रिपीट माई वर्ड्स. आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, देखें उसमें आपने फैक्ट स्टेट किया, आपने उसके अफेक्ट बताए और क्या आपने उसको कंक्लूड किया जो भी एग्जामिनर उसमें आपसे डिमांड कर रहा है. Then avoid writing too much theory. He doesn't want theory. He wants the application of theory on that scenario. So don't write theory. Even if you are writing theory, जैसे आज हम देखेंगे, तो उसको मोल्ड कीजिए, उसको उस सिनेरियो के मुताबिक उसको कन्वर्ट कीजिए. It should not sound simple as a theory. Then a very important is apply the and rule. बेटा इन 2 चीज़ों को मैं यहाँ साथ आपस में मिला रहा हूँ. One is, look at the verb given in the question. आप देखेंगे सवाल के अंदर verbs होंगे identify, explain, narrate. You must attempt the verb. आज और अगले 3 दिन मेरा ये focus होगा what does explain means, what does analysis mean, what does narrate means, what does detail means. एग्जामिनर उसमें कितना चाह रहा है. वर्ब को पढ़ें कि एक सवाल के अंदर उसने कितने वर्ब्स लिखे हैं, क्वेश्चन को पढ़ें. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन. अब गौर से सुनना बेटा, योर सोल्यूशन मस्ट आइडेंटिफाई वेयर इज आइडेंटिफिकेशन एंड वेयर इज एक्सप्रेशन. एग्जामिनर को नजर आए कि इस बच्चे ने यहां आइडेंटिफाई किया है और यहां पर उसने एक्सप्लेन किया है. तो ये 2 पॉइंट्स क्या हैं. पहले तो वर्ब देखो, फिर कितने वर्ब्स यूज हुए और यह भी पता होना चाहिए हर वर्ब का माने क्या है. और फिर उसके बाद एंड रूल अप्लाई करते हुए हर वर्ब को अलग अलग अटेम्प्ट करो, पैराग्राफिंग करो, बेशक हेडिंग दो, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेनेशन, whatever you will definitely see in my solution today for those exams.
Now, I'll be discussing this winter 2022 paper. जो लोग ऑनलाइन हैं मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि अगर वो इतनी देर में ये पेपर अपने पास रखें. कल के लिए याद रखिएगा, विल बी अटेम्प्टिंग समर 2022 एंड विंटर 2021 पेपर. तो ऑलरेडी जब आप सेशंस के लिए आए, जो यहाँ पर हैं उनको तो यहाँ पर ही कॉपीज़ मिल जाएंगी. जो ऑनलाइन हैं वो ऑलरेडी अगर अपने पास ये पेपर निकाल के रख लें तो जिस तरह हमने इसको हल करना है वो आपको उसमें आसानी मिलेगी. आइए ज़रा देख लें इसमें कोर्स कवरेज क्या हुई थी इस पेपर में. और मैं इस पेपर को भी डिस्कस कर रहा हूँ कि किस किस एरिया में से उसने सवाल पूछा. इसको साथ ही पिछली 3 टर्म्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ. और बेटा डेफिनेटली हमारे सामने एक ओपिनियन आ जाती है कि व्हाट कुड बी इन द नेक्स्ट पेपर. कुछ एरियाज आप देखेंगे वो हर दफा टेस्ट हो रहे हैं. कुछ एरियाज डेफिनेटली आइडेंटिफाई हो जाते हैं जहां पर एग्जामिनर चेंज करता है. आपको मालूम है कि आपका जो पूरा कोर्स है वो 5 डिफरेंट मॉडल्स में डिवाइडेड है, ABCDE. उसमें जो पहले 8-9 चैप्टर्स हैं वो मॉड्यूल ए में हैं. देन वी हैव मॉड्यूल 10 जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है. एंड इन माय ओपिनियन दिस इज योर रीजन ऑफ सक्सेस. अभी देखते हैं इसकी वजह क्या है. एक चैप्टर है चैप्टर 10 और पूरा मॉडल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. इसके बाद आपके पास तीसरा मॉडल है, दैट इज सी, एंड दिस इज चैप्टर 11 टू चैप्टर 15. और फिर आपके पास मॉड्यूल डी है जिसमें 2 नए चैप्टर्स डाले गए जब इस सब्जेक्ट को BMS से, नई स्कीम के अंदर BMS से कन्वर्ट किया गया इनटू SPM. और पिछली 3 अटेम्प्ट्स में इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आ रहे हैं. और बेटा मेरे नज़दीक दे आर गिव अवेज. ज़रा सा हम फोकस कर सकें तो हम इसमें फुल नहीं तो बहुत हद तक 70-80% मार्क्स लाजमी स्कोर कर सकते हैं. आप लोगों की कंसेप्चुअल नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है, एनालिटिकल नॉलेज, कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज़ टू फोकस. बट ये 2 चैप्टर्स हैं आपके जो इस बार ऐड किए गए, उनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा. एंड देन यू हैव द लास्ट जिसमें से 3 हैं. और अभी आपको वाज़ेह हो जाएगा इन 3 में से वो किस एरिया को रेगुलरली टारगेट कर रहा है. अब अगर इसमें ICAP की अगर हम वेटेज देखें तो मॉड्यूल ए में उसने 25 से 30% कहा गया है कि वो इसको रेंज करेगा. और अगर आप लास्ट पेपर को देखें तो इसमें से उसने 29% का एरिया इस एरिया में से कवर किया हुआ है. इट्स ह्यूज मार्क्स, 29%. और अगर मैं IT को लूँ जो चैप्टर 10 है तो उसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन उसने दिया हुआ है. तो अगर हम इन 2 को देखें, 2 एरियाज को, तो बेटा इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 45% ऑफ योर पेपर. और अगर इसमें से भी मैं अगर इसको अब चेंज करूं तो पिछली 3 अटेम्प्ट्स को लेकर आऊं तो देखिए इसमें से यहाँ पर वो शफल कर रहा है जिसमें, लेकिन IT के अंदर आप देखिए उसकी जो वेटेज है 15, 19 और 18% हर अटेम्प्ट में पूछ रहा है. तो ये मैं आपसे कह रहा था कि दिस इज अ रीजन फॉर सक्सेस. इट इज नॉट दैट इजी, बट अजान इससे है कि यू कैन फोकस ऑन 1 चैप्टर एंड यू कैन इंश्योर दैट यू कैन हैंडल अ क्वेश्चन ऑफ एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स. जबकि पहले मॉड्यूल में मेरे नज़दीक अगली दफ़ा कहाँ से वो चीज़ पूछ सकता है, दैट इज़ द एरियाज विच हैव नॉट बीन टारगेटेड इन द लास्ट 3 अटेम्प्ट्स. इस पर मैं बाद में आऊँगा. अभी मैं वो क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस एरिया में से अगर आप देखें तो 25 से 30% वो अटैम्प्ट मांग रहा है. और 20% के करीब, वो 15 से 20% के करीब वो IT के चैप्टर में से डिमांड कर रहा है. और उसमें से हर दफ़ा पूछ रहा है आपसे. फिर अगर मैं लास्ट पेपर को देखूं तो इसके अंदर ये जो मॉड्यूल C है इसके अंदर वो 26% का उसने क्वेश्चन पूछा है. इसमें से डेफिनेटली एक चैप्टर है जिसमें से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है. और बेटा वो क्वेश्चन है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. और अगर आप देखें तो लास्ट अटेम्प्ट में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, विंटर 21 में 15 का था, समर में
8 था रिलेटिवली कम, लेकिन अगर आप देखें तो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से लाजमी आ रहा है। तो अगर मैं ये ले लूँ तो ये 3 सेक्शंस, 3 हिस्से, अब आपके 55% पेपर आपका ये डेफिनेटली कवर कर रहा है। फिर इसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जो है, जो मैंने बताया, इसमें देखिए लास्ट अटेम्प्ट में 15% था, समर 22 में ये 21%, और क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट थी जब ये बीएमएस में कन्वर्ट हुआ तो रिलेटिवली शायद एग्जामिनर ने उस वक्त इतना फोकस नहीं किया, 9% है, लेकिन अब ये फुल फ्लेज इसमें से क्वेश्चन बना रहा है 21 से 12%। और अभी जब मैं आपके साथ पेपर करूँगा तो आप देखिएगा एक सवाल जिसका जाविया एक जैसा हमेशा आ रहा है, और डेफिनेटली इस एरिया में से क्वेश्चन बनता ही उस तरह का है। तो अभी हम देखते हैं कि वो क्या है, लेकिन ये वो एरिया है जिसमें से कि वो लाजमी पूछ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर इसमें से भी ये जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है, एंड दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 15%। तो अब आपके 3-4 मेजर एरियाज आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अगर हम पिछले 3 अटेम्प्ट्स, मेरे लिए पिछले बीएमएस की अटेम्प्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो डिफरेंट स्कीम थी, हाँ उससे भी कुछ था, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट 3 अटेम्प्ट्स हैं जब से ये बीएमएस स्कीम में ये कन्वर्ट हुआ है। तो उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन आपके पास 12 से 15, और जैसे मैंने कहा कि ज़रा सी तवज्जो से आप इसमें बहुत ज़्यादा, जस्ट यू कैन स्कोर जस्ट लाइक अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। देन यू हैव दिस लास्ट सेशन, और इसमें से भी आप देखिए जहाँ वो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ रहा है वो है एथिकल रेजोल्यूशंस। देयर आर सर्टेन एथिकल इश्यूज, और वो आपसे उसकी एथिकल रेजोल्यूशंस पूछ रहा है। और मेरे नज़दीक ये लास्ट चैप्टर ही इन तीनों में से ज़्यादा अहम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग है, बाकी दोनों में थ्योरी है। लास्ट इसलिए है कि हमारे सामने वी आर कन्फ्रंटेड विद सम एथिकल इशू एंड वी हैव टू गिव आवर ओपिनियन हाउ टू रिजॉल्व दैट एथिकल इशू। तो मेरे नज़दीक ये जो आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 20, वो इसमें सबसे अहम है। तो बेटा अगर मैं इस चीज़ को अब कंक्लूड करना चाहूँ तो मेरे पास जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, नो डाउट इट इज़ 9 chapters, बट दिस इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 25 to 30% of my paper. Then I have this IT question, 1 chapter. Then I have this marketing essentials. Then I have this financial and non-financial performance measurement. And then I have this ethical resolutions. ये आपके important chapters हैं जो कि highlight होते हैं if you review the last 3 years papers. ठीक है, और यहाँ पर इसी पे अभी आप पेपर आपके सामने आएगा, देखते हैं हम किस तरह का ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, सो वी नो विच आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज नाउ बेटा। ठीक है, ओके। नाउ अब दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 नाउ, और ये थैंक यू, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और ये वो क्वेश्चन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जो वो बार बार हमसे पूछ रहा है। अब देखिए मेरी अप्रोच क्या है, रीड द चैप्टर फर्स्ट योर सिनेरियो, और उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को निकाल के अलग लिख लो, एंड मेक श्योर दैट व्हेन यू आर राइटिंग द सॉल्यूशन यू आर हैंडलिंग दोज फैक्ट्स। ठीक है, अब फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एवरीवन जो कि ऑनलाइन है उनके पास शायद पेपर ना हो, तो आई विल बी फोर्स्ड टू रीड दिस पेपर, बट दोज हु आर हियर दे कैन फोकस ऑन द पेपर, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स अगर हमने थोड़ा सा टाइम बचाना है तो कोशिश करें कि मुझे ये रीड आउट ना करना पड़े, सो दैट यू ऑलरेडी हैव दिस क्वेश्चन पेपर विथ यू। अब ये मैं इसमें से मेजर पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। दिस इज अ मीडियम साइज मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी ने जब इंडस्ट्री में एंटर किया तो उस वक्त देयर वर वेरी फ्यू कंपेटिटर्स इन द मार्केट, सो प्रॉबेबली इसमें बैरियर्स कम थे, इसमें कंपटीशन लेवल कम था, तो बिल्कुल डिफरेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थी जब इस कंपनी ने इस मार्केट में एंटर किया। फिर ग्रेजुअली इसमें लोकल असेंबलर्स एंटर हुए,
और उन्होंने चाइना से एक ही क्वालिटी की ऑलमोस्ट सिमिलर सीकेडी किट्स जो हैं वो इंपोर्ट करनी शुरू कर दी. सो नेचुरली व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो दैट देयर वाज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंपटीशन. ये बेटा आपको ये फेसबुक पे जैसे ऑलरेडी का ये फाइल अटैच कर दी गई है तो वहाँ पर मौजूद होगी. यहाँ पर हाँ, यहाँ के लिए आप जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं. देन इस अरसे में अब कंपटीशन जब इंक्रीज हुआ तो ये जो हमारी कंपनी है इनोवेटिव मोटरसाइकिल्स लिमिटेड, इन्होंने डिफरेंट वेरिएंट्स मोटरसाइकिल के इंट्रोड्यूस करना शुरू किए. इस जुमले की अहमियत क्या है? जब हमारा इस जुमले की अहमियत यह है कि वी आर ऑल प्रोड्यूसिंग, दे ऑल यूजिंग सिमिलर टाइप ऑफ किट्स. somehow we have to innovate, somehow we have to differentiate, we have to be different from others. Now I may ask you, beta, if innovation is the requirement of the industry, which one function we must invest in? We all having the same kits, we got to differentiate our products from others, otherwise we all will be same. इस कंपटीशन में डिफरेंशिएशन लानी है. विच वन फंक्शन यू मस्ट इन्वेस्ट इन? सॉरी, क्वालिटी, R&D, एब्सोल्युटली, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और अभी आपको इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमारे सामने उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट मिलेगा. सो लेट्स जस्ट फर्स्ट सेटल डाउन नाउ कि इस इंडस्ट्री में इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इसमें उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज चीज कर दी, एंड दैट इज द प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस इज नॉट चेंज ओवर द लास्ट 2 years. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रिजल्ट्स. इससे पहले कि आप रिजल्ट फोकस करें बेटा, जरा देखिएगा सामने. लुक एट द मार्किंग क्राइटेरिया, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. वेयर आर द मार्क्स? पहले वो ये कह रहा है कि देयर इज 1 mark फॉर ईच कैलकुलेशन एंड देयर आर 2 marks for analyzing each ratio. What does it mean? Do all the possible calculations. Keep on doing it. And wherever you see you can calculate a ratio, vertical analysis, do it. तो पहली चीज तो हमें यह पता चल गई कि इस तरह के सवाल में मार्क्स कहाँ हैं. The marks are not even, अभी हमने उसका इंटरप्रिटेशन भी नहीं शुरू की. It is on the calculations. और इस तरह के सवाल में कैलकुलेशंस में हमारे पास मार्क्स हैं ऑल्सो ऑन फोकसिंग ऑन सर्टन रेशियो. जब हम फिगर्स देखेंगे तो हमारे पास खुद ब खुद हमारी नॉलेज से आ जाएगा कि हम कौन कौन सी रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूँ, मार्क्स कहाँ हैं? ऑन कैलकुलेशंस एंड ऑल्सो द यूज ऑफ सर्टन रेशियोज. देन 1 mark फॉर ईच रिकमेंडेशन अप टू मैक्सिमम 2. तो देखिए अगर आप तो बेटा यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में वेयर आर द मार्क्स ऑन द कैलकुलेशन एंड द रेशियोज? अनफॉर्चुनेटली ये वो एरिया है जहां बच्चा बिल्कुल फोकस नहीं करता. वो फिगर्स को सुपरफिशियल वहां पर लेता है और उसी फिगर को डिस्कस करना वो शुरू कर देता है विदाउट डूइंग सर्टन कैलकुलेशन. लेट्स सी नाउ, फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव डन दीज कैलकुलेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. What is the percentage increase or decrease? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो ऑनलाइन है वो भी ज़रा इस रिजल्ट्स को एक दफ़ा देख लीजिए. कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, क्या क्या फिगर्स हैं, इनको ज़रा एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिए एंड देन आई विल डिस्कस आफ्टर दैट. और अब जब मार्क्स हैं उसमें इंश्योर करना है कि बेटा हर फिगर जो यहाँ पर दी गई है इट इज डिस्कस्ड इन आवर सोल्यूशन. डोंट इग्नोर एनी ऑफ द फिगर कि जी यहाँ इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता.
एग्जामिनर ये देख रहा है, हैव यू यूज्ड ऑल द फिगर्स गिवन इन द सिनेरियो, जहाँ जहाँ उसकी इफेक्ट्स हो सकता है या उसके इंटरलेट। अब अगर हमारे पास रेवेन्यू की फिगर भी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी है, तो हम तीसरी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, ये पहली रेशियो हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली, जो एग्जामिनर कह रहा है जी कि रेशियोज को डिस्कस करें। कुछ रेशियोज हमें ऑलरेडी यहां पर कैलकुलेट करके दी गई हैं। देखिए यहां पर हमारे पास जो पहली रेशियो दी गई है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। I hope we all know what is the formula for return for capital employed. We know that. बोलिए, वैसे बोलें। It is your return on, that means your profit after tax divided by your total assets. या आप ये समझ लीजिए total assets minus your current liabilities. These are the assets that you will use for calculating the return on capital employed. ठीक है? It is your total assets minus your current liabilities. These are the assets which are employed. This is the capital which is employed. And usko net profit divided by those assets will give you the return. तो यहाँ एक तो रेशियो में ये दी गई है। दूसरी देखिए हमें यहाँ पर annualized रिटर्न दी गई है शेयर होल्डर्स की। This includes both your capital gain and the dividends. And I'm sure we have this basic knowledge. What do I mean by capital gain and what do I mean by डिविडेंड्स। तो तीन रेशियोज अभी तक आपके सामने आ गई। एक हमने खुद कैलकुलेट की, दो दी गई थी, तीसरी रेशियो नहीं है, एक इंटरेस्ट हमें रेट दिया गया है, इंटरेस्ट रेट। और जब मैंने इसका एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड वे टू यूज दिस इंटरेस्ट रेट बाय द बैंक, क्योंकि हमें यहां डेट की तो कोई फिगर दी नहीं गई। तो इस इंटरेस्ट रेट का क्या इस्तेमाल करना है, इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बात आपको बताने वाली इस वक्त यह है, यू मस्ट यूज एवरी फिगर गिवन इन द सिनेरियो। तीसरी रेशियो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज योर क्विक रेशियो। हाउ डू वी कैलकुलेट क्विक रेशियो? फ्रॉम योर करंट एसेट्स यू माइनस योर इन्वेंटरीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये वो रेशियो है जो कंपनी की इमीडिएट लिक्विडिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। इफ योर करंट रेशियो हैज टू बी 1:1, greater than 1:1, quick ratio also has to be greater than 1:1, and that reflects you have sufficient ready assets available to serve your liabilities. इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है? काइंडली अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं या मोबाइल फोन्स हैं तो इसको यूज़ कीजिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स की फिगर है, कैश की फिगर है, इन्वेंट्रीज नहीं दी गई, तो दीज आर योर करंट एसेट्स, एंड देन यू हैव योर करंट लायबिलिटीज। कैन यू काइंडली डू इट एंड सी वेदर यू गेट द सेम क्विक रेशियो और नॉट? So if I may ask, the quick ratio reflects a satisfactory liquidity or is the company in an issue? Is the company की liquidity position quick ratio क्या reflect कर रही है? Is it satisfactory? बोलिए। अगर एक कंपनी के करंट एसेट्स 1 लाख हैं और करंट लायबिलिटी 70,000 है, तो करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1:1. Is it satisfactory or is it problematic? It is satisfactory. Company has sufficient current assets to pay its current liabilities. इसी तरह बेटा अगर इसकी क्विक रेशियो 1:1 से ज्यादा है, what are quick assets which are readily available in the form of cash or near cash to pay your liabilities? If it is greater than 1, that means company has sufficient quick assets available to serve your current liability. It reflects a satisfactory liquidity position. लेकिन असलियत इससे बड़ी डिफरेंट आएगी जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन पर जाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो एग्जामिनर ने कहा कि जी मैक्सिमम कैलकुलेशंस, ये है मैक्सिमम कैलकुलेशंस। हाउ मेनी मार्क्स? 3. देन ही सेज for analyzing each ratio,
Now we know how many ratios are there which we need to discuss. Operating profit margin ratio. We need to discuss return on capital employed. We need to discuss this annual return to the shareholders. And we need to discuss this quick ratio. And how many marks there are? 7. जब मैंने इसका एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े तो उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग था. उसने कहा जी स्टूडेंट ने पहले तो रेशियोज यूज़ नहीं की, वही यूज़ की जो मैंने इसके अंदर डेटा दिया था. उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट नहीं किया, क्विक रेशियो कैलकुलेट नहीं की. फिर अगर की भी तो मुझे सिर्फ ये बताया व्हाट आर द रिजल्ट्स. वो तो एक मैट्रिक का स्टूडेंट भी कर लेगा. मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन दीजिए, मुझे सिर्फ रिजल्ट कैलकुलेट करके ना दे दीजिए. मैंने कहा था सजेस्टिव नहीं होना, कंक्लूसिव होना. अभी हम देखते हैं किस तरह हम कंक्लूसिव होंगे. लेकिन अब यहां से आपको ये पता चल गया कि नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह का पेपर आए तो इंश्योर करना है हर फिगर को यूज करो. फौरी तौर पर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करो. व्हाट इज दैट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. फौरी तौर पर अगर कोई रेशियो कैलकुलेट हो सकती है जो आपको मालूम है कि इन दो के कंपैरिजन ऑफ रेशियो, फौरी तौर पर उस रेशियो को कैलकुलेट कर लो एंड यूज दैट इन योर सोल्यूशन. आइए अब पहला हम यहां पे एनालिसिस करते हैं. तो देखिए यहां पर अब हम इसी ऑर्डर में नीचे की तरफ जाएंगे और एक एक फिगर को यहां पर हम रिव्यू करते चले जाएंगे. इस कंपनी का जो रेवेन्यू है बेटा दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 2%. और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 0.9%. व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? द कंपनी हैज बीन एबल टू कंट्रोल इट्स कॉस्ट. ठीक है, दैट इज अ गुड पोजीशन कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट को यहां पर रिड्यूस किया. लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है जिस पर आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं. सामने जरा देखिएगा. लुक एट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स. जहां पर ये रिसर्च एक्सपेंडिचर्स 85,000 के थे, 2022 में ये एक्सपेंसेस हो गए सिर्फ 42,700 के. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया है तो उसमें मेजर फर्क क्या आ रहा है? द कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस. अब डू यू थिंक द कंपनी हैज डन राइट स्ट्रेटेजी? बोलिए. अभी हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, इस इंडस्ट्री में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और वही हमें नजर आ रहा है कि इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंसेस कम कर दिए. लुक एट दिस सपोर्टिंग फिगर. इन 2021 we introduced 2 new products, but in this year we introduced only 1. इन सारों को आपस में रिलेट करें. ठीक है, तो अब हम इसका पूरा एक किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं इन डिफरेंट वर्ड्स. लेकिन डेफिनेटली ये कि जी रेवेन्यू इसका कंपनी का इंक्रीज हुआ 2%. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0.9% से इंप्रूव कर गया. कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया. अपेरेंटली हमें नजर आ रहा है कि दिस इज बिकॉज द कंपनी हैज कट डाउन ऑन इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस. कंपनी ने अपनी बॉटम लाइन फिगर को ठीक कर लिया. बट व्हाट इट हैज डन रॉन्ग? उस इंडस्ट्री में जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन की जरूरत थी उसने बॉटम लाइन फिगर को इंप्रूव करने के लिए अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इग्नोर कर दिया. एंड इट हैज बीन एबल टू इंट्रोड्यूस only 2 products rather than 1 product rather than 2. Is this point clear to everyone? बोलिए. ठीक है. और by the end of the day, if I was attempting this paper, तो मैं इसको टिक करता चला जाऊंगा कि इस 3 फिगर्स को, इन फिगर्स को मैंने अपने एनालिसिस में ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है, ताकि बाय एंड ऑफ द डे मुझे ये यकीन हो जाए कि मैंने कोई फिगर डेटा में से इग्नोर नहीं की है. ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात यहां पर? जी जी बिल्कुल. अभी हम उस पर आगे बात करते हैं. जब हम आते हैं ना इस पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम उस पर बात करते हैं. नो डाउट हमारे पास जो क्विक एसेट्स में से जो कॉम्पोजिशन इंक्रीज, इन्वेंट्री है ही नहीं, अब इन्वेंट नहीं है, और कैश की कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी. वेरी राइटली पिक्ड अप. लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ लेता हूं मैं इसको.
अब एक नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, वो आप वाला ही पॉइंट है। लुक एट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर आप देखें तो वो 35.4% से कम होकर आ गया है 33.40%. So there is a drop of about 2.3% in return on capital employed. इसकी वजह क्या है? कंपनी के assets turnover कम हो गई है. What is assets turnover? Sales divided by total assets. गौर से सुनिएगा. What is assets turnover? 1 rupee invested in assets is giving me how much productivity? If assets turnover is 2, what does that mean? 1 rupee invested is giving me a productivity or sales revenue of 2. Okay? If it is 5 or 6, whatever, 1 rupee invested is giving me a productivity of 5 or 6. Higher the ratio, better it is. यहाँ पर assets turnover कम हुई. क्यों? जो आपने बेटा पॉइंट उठाया था, इस कंपनी के एसेट्स में मेजर इंक्रीज किस में हो रहा है? कैश. इज इट प्रोडक्टिव? इट मे बी विद वेरी लिटिल प्रोडक्टिविटी और इट मे बी विद एब्सोल्युटली नो प्रोडक्टिविटी. जिसकी वजह से क्या हुआ? एसेट्स टर्नओवर, हमारे पास जो एसेट्स है वो प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं हो रहे. और जब प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं है तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इवेंचुअली बॉटम लाइन फिगर वो कम हो गई. और बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर, जरा देखिए, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेशन, तकरीबन आप देखें को आपके पास 42-43,000 का डिफरेंस है और इतना ही आपके पास एक्सेस कैश पड़ा. इट शोज कंपनी के पास कैश अवेलेबल था और वो इस कैश को यूज कर सकते थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने इसको नॉन प्रोडक्टिव रखा, जिससे एसेट्स टर्नओवर कम हुई और एसेट्स टर्नओवर कम होने से उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गई. You see, what it is just a simple focus, sit down and focus on the figures. I have to use all the figures in my scenario. There's nothing irrelevant given in my paper. Ever made my point clear? ठीक है बेटा? Okay. अब देखिए अगले पे क्विक रेशियो. क्विक रेशियो ऑल्दो हमें शो कर रही है कि ये रेशियो 1.41 से इंक्रीज होकर हो गई है 1.71. सो इट रिफ्लेक्ट्स अ सेटिस्फैक्टरी लिक्विडिटी पोजीशन. लेकिन गलती क्या है कि यहाँ पर हमने इस सारे को पाइल अप कर लिया इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट विच इज़ नॉन प्रोडक्टिव. ये बड़े आराम से ये पैसा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल सकते थे और उससे प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते थे और उससे और वेरिएंट्स हम जनरेट कर सकते थे. कंपनी ने आइडल कैश अपने पास रखा है एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस कंपनी इज इनकरिंग अ वेरी हैवी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट by keeping that funds in the form of cash or cash equivalents. फिर देखिए यहां पर शेयर होल्डर्स रिटर्न. हमें यहां नजर आ रहा है कि शेयर होल्डर्स रिटर्न अगर बड़ी है तो बड़ी नेग्लिजिबल, लेकिन ऑलमोस्ट स्टेबल रही है. अब बज़ाहिर क्या सिर्फ इसी को यहां यूज करना था? लुक एट द डेट कॉस्ट. आप मुझे बताइए बेटा, जो शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, वो आपसे मिनिमम रिटर्न कितनी चाहेगा? किस चीज से ज्यादा हो? द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स. इन्वेस्टर यही कहेगा आई मस्ट गेट अ रिटर्न ग्रेटर देन द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स. क्यों? आई एम टेकिंग अ ग्रेटर रिस्क. हमेशा इक्विटी होल्डर का जो शेयर रिस्क है वो डेट होल्डर से ज्यादा है. किस लिहाज से? जरा सुने. शेयर्स इट्स परपेचुअल, कोई उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं, बट ऑल द डेट्स हैव सर्टेन मैच्योरिटी. ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स देयर इज नो बैंक्रप्सी, बट ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल देयर इज डेफिनेट बैंक्रप्सी. तो किसका रिस्क ज्यादा है? शेयर होल्डर का. तो इसलिए कहता है कि जी मेरी जो रिटर्न है वो मार्केट बैंक इंटरेस्ट रेट से ज्यादा. तो यहां इसका इस्तेमाल क्या था कि हम शेयर होल्डर्स की रिटर्न को कंपेयर करते विद द बैंक इंटरेस्ट रेट्स, कि जी आवर रिटर्न शुड हैव बीन ग्रेटर देन दिस 11%. और वो हमें नजर आ रहा है कि दोनों सालों में वो
नहीं है. So our shareholder as a stakeholder will not be very satisfied with this company's strategy. ठीक है, क्लियर हुई बात? अच्छा, अब एक बहुत अहम बात सुनो जो सबसे अहम है. बेटा, योर सब्जेक्ट इज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. जो चीज भी आप एनालिसिस करो, गौर से सुनना, उसको स्ट्रेटेजी से जोड़ो. कंपनी की स्ट्रेटेजी सही थी या नहीं थी. जब मैंने ये डिस्कस किया कि R&D कॉस्ट कम हुई, तो मैंने इसके कहा कि कंपनी की ये स्ट्रेटेजी सही नहीं थी. दिस इज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट. माय रिक्वेस्ट इज कि हर एनालिसिस को स्ट्रेटेजी के साथ जाके जोड़ो कि ये जो चीज हमने की वो स्ट्रेटेजी हमारी सही थी कंपनी के लिए अंडर द सर्कमस्टांसेस और नॉट. इसको ओपन ना छोड़ना. सो नाउ द कंक्लूजन रिकमेंडेशंस. अब जरा देख लीजिए, एक दफा मैं क्वेश्चन आपको फिर दिखा दूं. एवेल्युएट financial and non-financial performance for the year. Look at the verb used, evaluate. मैंने शुरू में कहा था verb को attempt करना. अब बेटा मेरी बात गौर से सुने. Evaluate means you must end at conclusion and recommendations. You have to evaluate. So you must be conclusive and end up your answers with conclusions and recommendations. आइए जरा देखते हैं. इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है, दैट इज मेरिली जस्ट 2%. इट हैज बीन वेरी वेरी लो, ऑल्दो देयर इंक्रीज, लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ रेट है. व्हाई इट हैज बीन सो, हम बड़ी दफ़ा इस पे बात कर चुके हैं. क्योंकि ये R&D में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर रहा, हम अपने आप को दूसरों से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम है. ये तो हो गया हमारा कंक्लूजन. रिकमेंडेशन क्या है? वो जो आइडल कैश पड़ा है, we must invest it into research and development. Now you see, we have made our answer conclusive. We have not left it open. Many of us may do what? Do the analysis, finish off, but end it up with the conclusion. दूसरा देखिए, कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया. मेरी बात को गौर सुनिएगा. कंपनी doesn't have a clear strategy. They're very strong words. कंपनी की स्ट्रेटेजी हमें क्लियर नहीं लग रही कि उसकी स्ट्रेटेजी कॉस्ट लीडरशिप है या डिफरेंशिएशन है. इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है? डिफरेंशिएशन. हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट कंट्रोल. तो कंपनी डजंट हैव अ क्लियर स्ट्रेटेजी. उसने बॉटम लाइन फिगर तो प्रूव कर ली, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, लेकिन लॉन्ग रेंज में उसने अपने ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर दिया और उसने अपनी स्ट्रेटेजी को इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक नहीं रखा. तो आपने देखा कि रिकमेंडेशन और कंक्लूजन को मैं किस पर लेके गया? अगेन स्ट्रेटेजी पर. एंड अगेन व्हाट इज द रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन ये है कि कॉस्ट को आप एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हो. आई एम श्योर एवरीबडी एग्रीज टू इट. एक हद से ज्यादा आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते. यू कांट से every year reduce the cost by 10%. How can you do that? That will not be possible. एक हद तक कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है. यहाँ से आपको बॉटम लाइन से हटकर लॉन्ग रेंज पर जाना पड़ेगा. अपनी स्ट्रेटेजी को फोकस करना पड़ेगा. कॉस्ट लीडरशिप से हटाकर इसको लेकर जाना पड़ेगा टू डिफरेंशिएशन. और बेटा ये मत समझें डिफरेंशिएशन डज नॉट मीन कॉस्ट कंट्रोल. यू मस्ट डिफरेंशिएट विद इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल्स, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी कॉस्ट लीडरशिप नहीं होगी. You will not aim to sell on the basis of low cost. You will like to sell on the basis of differentiation. This is how we should have approached this first question. Okay? Any questions here? Those who are sitting here. So beta, what is the lesson we take from here for question number 1? You get the data, at once go for horizontal analysis. At once go for vertical analysis without wasting any time. Calculate whatever ratios you can. And then make sure that you use every figure in your solution. मैं कहता हूँ अगर इसमें हम 100% नहीं भी कर पाते, लेकिन हमने फिर भी अगर फिगर्स को यूज कर लिया है, you've done your job. अब आइए हम इसके पार्ट बी पर जाएंगे.
And if we can read this question, the CEO of IML feels that traditional financial reporting is not sufficient as a sole measure of a company's performance. And the business needs a reporting environment that allows to determine, monitor how IML's strategy derives performance and leads to creation of value over time. He intends to introduce integrated reporting of IML. ठीक है, ये जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का चैप्टर है इस सब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर ये पूरा एक टॉपिक दिया गया है, दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. ये आपके लिए बहुत अहम है, इसको बहुत गौर से देखिएगा. नाउ अब इसकी ज़रा रिक्वायरमेंट देखें. ब्रीफली डिस्कस द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपिंग एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. देयर आर 6 प्रिंसिपल्स. And how many marks are there? 3. So very easy. It is 0.5 each. And it's almost theory. याद रखिए, बिल्कुल एक स्किल है कि हम लिखना वही हमने थ्योरी है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कंपनी का नाम बीच में डाल देना है. तो इट लुक्स लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग टू माय ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन मैं थोड़ा सा थ्योरी की बैकग्राउंड को लेना चाहूँगा. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होती है बेटा? बेटा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, फर्स्ट फीचर इज इट हैज टू बी कंसाइज एंड इट गिव्स यू अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, हाउ द कंपनीज स्ट्रेटजीज, हाउ द कंपनीज गवर्नेंस, its performance and its prospects have performed in context of the external environment. इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हुए ये बताना है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी कैसी थी, उसकी गवर्नेंस कैसी थी, उसके प्रॉस्पेक्ट्स कैसे थे और उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी. किस चीज़ को कंसिडर करते हुए? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को. किस लिहाज से? हाउ इट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट वैल्यू. आप में से कोई मुझसे शेयर करेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्ड वैल्यू? I'm sure you've gone through that topic at BMS level, BMBS level, or where that is value chain. And you must remember that word value. What is this word value? Sorry, come again? Absolutely right, shabash. Value is anything for which the customer is ready to pay. हमारी स्ट्रेटेजी किस लिए है? वैल्यू एडिशन टू माय कस्टमर. हमारी परफॉर्मेंस किससे एम करेगी? हाउ मच वैल्यू वी हैव एडेड फॉर आवर कस्टमर. हमारे गवर्नेंस, ऑल दीज फैक्टर्स, they are all aiming at what? How we have been successful to add value for my customer, keeping in consideration what? My external environment. अब जरा बेटा तवज्जो सुनिएगा, क्योंकि अभी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ. इसमें जब हम ये सारे काम कर रहे हैं तो रिमेंबर वी आर यूजिंग सर्टन कैपिटल्स. अब ये लफ्ज कैपिटल यहां पर बड़े ही एक बड़े स्कोप में यूज हुआ है जब हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात करते हैं. इट इज नॉट जस्ट शेयर कैपिटल. हमें यहां यह समझना होगा कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में हम कैपिटल किसको नाम दे रहे हैं. आइए जरा देख लें हम. दिस इज चैप्टर 7. वहां पर आपको ये टॉपिक उसमें मिल जाएगा. बेटा देयर आर there's 6 different type of capitals which are covered under integrated reporting. The first is the simplest one, the financial, the cash available with us. The second capital is manufactured. The assets like building, infrastructure, equipment, that is also categorized as a capital for integrated reporting. The third is intellectual, which are knowledge-based intangibles हैं, like we have copyrights, we may have software, we have protocols, which have resulted into what? Which have resulted into some sort of a competitive advantage. Those intangibles, that is also regarded as capital. चौथा क्या है? That is a human resource, which includes what? Your human resource skills, experience, their level of motivation, their commitment. Then you have social and relationships,
That includes things like organizational culture. You see, अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बड़ा ही एक इंटेंजिबल सी चीज़ है, लेकिन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ये कहता है कि दिस इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस, दिस इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर माय कस्टमर, वो उसको भी कैपिटल में रिगार्ड कर रहा है. इसमें ये भी शामिल है द रेपुटेशन, द ब्रांड वैल्यू. Then you have the naturals. Here by naturals we mean those natural resources that we may use as an input in our organization, in our processes. तो बेटा 6 किस्म के कैपिटल्स इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में हैं. ये कैपिटल्स वो हैं जो हम यूज कर रहे हैं. किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. और ये 6 कैपिटल्स हम किस लिए यूज कर रहे हैं? फॉर वैल्यू एडिशन फॉर माय customer. How effectively we were able to use these capitals and we were able to create value for our customers. ठीक है, तो अभी मैंने ये बता दिया कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है, और उसके बाद इसमें लफ्ज जो कैपिटल है इसका माने क्या है. अब आइए इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं. 6 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं. 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 0.5 ईच. पहला प्रिंसिपल वही है बेटा, एक कंपनी की इनसाइट हम हासिल करें. हाउ द स्ट्रेटेजी वॉज एबल टू क्रिएट व्हाट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. जरा यहीं तवज्जो कर लो, इसको सिनेरियो से कैसे जोड़ना है. इस कंपनी की स्ट्रेटेजी, अगर मैं वैल्यू एडिशन की बात करूं तो शॉर्ट टर्म थी, उसने मीडियम टर्म को भी इग्नोर किया और उसने लॉन्ग टर्म को भी इग्नोर किया. गाइडिंग प्रिंसिपल मुझे थ्योरी ने दे दिया. ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, दिस इज एग्जैक्टली फ्रॉम द बुक, एंड दिस इज व्हाट देयर इन द सोल्यूशन बाय द एग्जामिनर. कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ एक एडिशन करना है, केस स्टडी से रिलेट कर दो. डोंट राइट थ्योरी. जैसे मैंने अभी कहा कि इस कंपनी की स्ट्रेटेजी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के मैं अप्रोच से लूं तो उसकी स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म हमें दे रही थी बेस, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म बेस नहीं दे रही थी. फिर दूसरा क्या है? अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेडनेस एंड डिपेंडेंसीज. कुछ चीज़ों की आपस में इंटरडिपेंडेंसी है. जैसे हमने यहां देखा कि इंटरडिपेंडेंसी किसके दरमियान थी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट्स. वो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें, उनके अंदर किन के दरमियान इंटरडिपेंडेंसी रिलेशनशिप थे, हम उसको एक रिलेट करके एक होलिस्टिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दें अपने स्टेक होल्डर को. लुक, दिस इज माई कंपनीज परफॉर्मेंस. मैं एक और जाविये से इसको आपको दे रहा हूं. एसेट्स टर्नओवर, इट इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. तो जो रखेगा एवरीवन, एसेट्स टर्नओवर इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. लेट्स सपोज ये फिगर 2 से बढ़कर हो गई 2.5 इन 2 years. इसके साथ दूसरी एक रेशो निकालते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स. That is profit after tax divided by total assets. Let's suppose this has gone up from 1 to 2.75. Yeah, sorry. If this is 2, it has gone up to 2.5. It was 1 and this was 1.15. तो बज़ाहिर क्या लग रहा है हमें कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है. क्यों? रिटर्न ऑन एसेट्स भी बेहतर हो गई और एसेट्स टर्नओवर भी. ओके, लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल अकाउंटिंग क्वेश्चन. अगर मैं रेवेन्यू में से प्रॉफिट को लेस कर दूं तो मेरे पास बाकी फिगर क्या आएगी? कॉस्ट. तो अब जरा देखिए, यहां मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी 1. लुक एट हियर, व्हाट इज माय ऑपरेटिंग कॉस्ट? It is more than 1, isn't it? तो यहां क्या लग रहा है हमें? बज़ाहिर वो फिगर सही थी, लेकिन मैं इंटरडिपेंडेंसी अगर करूं तो मुझे नजर आ रहा है कि ये कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकी. एंड दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, कि इंटर रिलेट करो चीजों को, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दो, एक सुपरफिशियल फिगर ना दो कि जी लुके ऐसे, उससे ऐसे लगे कि जी सब कुछ बेहतर हो रहा है. अगर हम इंटरलेट करेंगे तो हो सकता है उसके पीछे हिडन फैक्ट हो. जैसे हमें यहाँ नज़र आ रहा है दोनों चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अगर मैं इनका दोनों का डिफरेंस लूँ और इंटरलेट देखूँ तो मुझे लग रहा है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को शायद कंट्रोल
नहीं कर पाई है। ठीक है जी, यस सर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर, बात वही है, बात सारी यासर वही है कि हमने इसको आपस में इंटर रिलेट करना है। अब चाहे आप उसको ये टाइम्स में कर लें, चाहे उसको परसेंटेज में कर लें, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज यू मस्ट इंटर रिलेट द थिंग्स विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन गिव अ होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू टू योर स्टेक होल्डर्स। फिर इसमें क्या है, डिस्क्लोज provide an insight to the nature and quality of organization relationship with its stakeholders and to what extent organization has taken into account the needs and the requirements of my stakeholders. Okay, Mandelow's model के मुताबिक बेटा what are the three categories of our stakeholders? Internal, external and connected. There are three categories. Integrated reporting ये कहती है कि बताइए who were the key players and to what extent you were able through your strategy able to safeguard their interest, able to keep them satisfied. Who were those who were to be informed? Identify करो आपकी strategy ने किस हद तक उन stakeholders को which are to be informed उनको satisfied रखा। वो जो आपके key players थे, आप बताएं कि कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स थे जो की प्लेयर्स थे और आपकी स्ट्रेटेजी ने किस हद तक उन स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाइड रखा। तो अभी मैं अगर पॉइंट 3 तक इसको जरा दोबारा रिपीट करता हूं। पहली चीज बताए कि स्ट्रेटेजी ने किस तरह मदद दी इन एडिंग योर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू। दूसरा हमने कहा कि जिन चीजों में इंटरडिपेंडेंसी है ऑर्गेनाइजेशन में उनको इंटर रिलेट करके, इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दो अपने स्टेक होल्डर्स को। तीसरी चीज उसने कहा जी अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो, बताओ किस हद तक आपकी स्ट्रेटेजी ने उन स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया। चौथा है यू मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल मैटर्स। I don't think after doing audit you need to know what are those material matters on which you need to identify everyone. Then the report must be concise and free of errors. And the last is it should be consistent over the time. Why a report should be consistent? What do you exactly mean by a report should be consistent? Year 2021, this report should be consistent with year 2022. Why? Because we have to make comparisons. अगर रिपोर्ट कंसिस्टेंट नहीं होगी ना बेटा कि एक दफा हमने कंपेयर कर लिया, दूसरी दफा उस पर फोकस नहीं किया, तो we will never be able to compare. And if we are not able to compare, we will not judge whether the performance has improved or it has gone down. So report has to be consistent. If one thing was touched in year 2021, it must also be covered in year 2021. Have I made my point clear? बोलिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर हम नमाज के लिए ज़रा ब्रेक ले लेते हैं फॉर अबाउट 15-20 minutes, and I will request it should be 15 to 20 minutes for namaz break, and then we'll come back to discuss the other questions. Okay? So let's take a break, please. This is a 15 to 20 minutes break. We'll meet after 15 to 20 minutes.
आपका नाम क्या बेटा? अच्छा, लेकिन आपने पहले दिया हुआ है पेपर फर्स्ट टाइम? चलो स्टार्ट। ओके जी। अब बेटा मैं डेलिबरेटली पहले क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ इंस्टेड ऑफ 2, बिकॉज थोड़ी सी मोनोटनी, क्योंकि वो भी तकरीबन उसी फॉर्मेट का है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आई एम जस्ट फर्स्ट अप्रोचिंग क्वेश्चन नंबर 3। अब इस सिनेरियो के जो मेन पॉइंट्स हैं पहले हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। उसकी समरी आपकी सहूलत के लिए इस वक्त स्क्रीन्स पर है। This scenario is about this company which is Smart Sanitary Limited and it is engaged in selling bathroom accessories. और उसका जो एक मिशन या एक ऑब्जेक्टिव है that it wants to become a leading brand in this industry. इस इंडस्ट्री में अभी तक जिस जगह पर लोकेशन पर ये कंपनी ऑपरेट कर रही है वहाँ पर जो बाथरूम फिटिंग्स हैं वो नॉर्मली जो उसके कंसल्टेंट्स हैं वो प्लम्बर्स के कंसल्टेंसी के बाद फिट करते हैं। और जनरली ऑल द हाउसेस इन दैट सिटी दे आर ऑलमोस्ट द सेम। और वो जो प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त अगर आप पॉइंट नंबर 6 को देखें, दे आर अवेलेबल फ्रॉम द लोकल हार्डवेयर and the sanitary stores. And most of the उसमें जिस particular product के मतलब हम बात करेंगे जिसमें ये change लेकर आए हैं वो वहाँ पर थे कि वो fixed shower heads थे। और जनरली हर कंसल्टेंट के साथ प्लम्बर्स थे, और जो प्लम्बर्स हैं जैसे हमारे यहाँ भी है वो डिफरेंट हार्डवेयर स्टोर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं और उसके थ्रू ये प्रोडक्ट बेची जाती थी। हमारी ये जो कंपनी है इस सिनेरियो में उसने चेंज ये ला रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ दोस फिक्स शावर हेड्स दे आर मूविंग दोस शावर हेड्स व्हिच कैन बी मूव्ड। सो इट वाज विद सम इनोवेटिव डिजाइंस एंड अ कंप्लीट चेंज फ्रॉम व्हाट वाज ऑलरेडी देयर इन द इंडस्ट्री। अब इस क्वेश्चन की ज़रा रिक्वायरमेंट देखिए। ये तो आपको पता चल गया कि इससे पहले सिनेरियो में ये है कि देवर फिक्स शावर हेड्स एंड नाउ दोज आर देयर व्हिच आर मूवेबल। अब सवाल ये कहता है एनालाइज द एग्जिस्टिंग 4 P's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स डिप्लॉयड बाय SSL। तो पहले तो एग्जिस्टिंग को हमने एनालाइज करना है एंड रिकमेंड। ठीक है, मिक्स्ड मार्केटिंग मिक्स डिप्लॉयड बाय SSL फॉर हैंड हेल्ड शावर हेड्स एंड रिकमेंड corrective measures if required for sustainable growth। इस कंपनी में हो ये रहा था कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती थी। अभी आपके सामने आ जाएगा कि वो तरीकाकार क्या था, और जो भी वो तरीका यूज़ करते थे उससे एक टेम्पररी इंक्रीज सेल्स में ज़रूर आता था, लेकिन वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं थी। थोड़े अरसे के बाद उसके अंदर फिर दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता था। तो सारे सिनेरियो को समझे तो इससे पहले था देयर वाज फिक्स शावर हेड्स, नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग हैंड हेल्ड शावर हेड्स। इसकी वो प्रमोशन कर रहे हैं और उससे एक टेम्पररी थ्रस्ट आता था सेल्स में, और जैसे ही उस कैंपेन का मार्केटिंग कैंपेन का इफेक्ट ख़त्म होता था तो उसकी सेल्स फिर डिक्लाइन करना शुरू कर देती थी। द प्रॉब्लम विद द कंपनी वाज द सस्टेनेबल ग्रोथ। हमने जो रिकमेंड करना है वो अब आपको समझ आ गया कि वो किस चीज़ के लिए है, दैट इज़ टू ब्रिंग अ सस्टेनेबल ग्रोथ। इस सारे सिनेरियो में जो हमने रिकमेंडेशंस देनी है चेंज की, उसके लिए समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली व्हाट आर वी लुकिंग फॉर। वी आर लुकिंग फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या थी। आई एम श्योर यू नो द मार्केटिंग मिक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दे आर 4: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। लेकिन जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो वी ऐड 3 more:
What three are the additional marketing piece? One is the physical environment. For example, in a hotel, there's a physical environment where the services are being delivered. Then along with it, other are the people. The people who render services are also part of the product. The doctor in the hospital is part of the product, people. The people standing on the reception desk of a hotel rendering services to the customers are part of the product. And the last is the processes. The processes through which we render services. Look at the banks. They are in services. And the processes through which they deliver the banking services are part of their banking product. तो तीन additional piece हैं marketing के, physical environment, people and processes. लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक manufactured products की, तो we are talking about only four piece: product, price, place and promotion. आइए देखें. All these facts in black, they are right from the case study. And one which is in red, it is what is our interpretation. So if you're wondering, ये facts कहाँ से आ रहे हैं, as we read the case study, हम इन marketing piece को वहाँ पर analyze करके अलग लिख रहे हैं. और फिर जो भी हमारी interpretation उससे निकलती है, हम उस पर बात करेंगे. First is, the product features are, they are innovative designs, very different from what already existed. So they are into differentiation. Then they are of better quality. They can be easily installed and fitted into the existing. So customer की जो switch over cost है वो बहुत कम है. जब customer switch over करता है from fixed shower heads to handheld, तो उसकी switch over cost minimal है. जितनी switch over cost कम होगी उतना ही product switch over आसान होगा. So product utility is convenient. Then it is a superior product, and इसकी हमने सारी अब जो interpretation निकाली है that they are producing a differentiated product. Case study में कहीं नहीं दिया गया. हमने देखा कि it's very different from what was there in the industry. हमने ये देखा कि ये superior quality थी. इसके features existing products से different थे. तो हमने करना था analyze. तो सिर्फ features नहीं लिखे. हमारा analysis क्या है? Analysis is that the company is selling a differentiated product. The product could be either low cost or it could be differentiated. So जो red part है, इसके marks हैं, that is were you able to analyze and give what is the company's position. बाद में हम देखते हैं कि इसमें changes क्या recommend करनी है हमने. अब आइए price पर. Price पर better quality and slightly lower in price. ये case study के अंदर fact दिया हुआ black में. अब बेटा जब हम एक नई product launch करते हैं और हम उसको low price पर लेकर आते हैं, तो marketing की इस्तिलाह में हम इसे कहते हैं market penetration strategy. मुझे आपकी तवज्जो चाहिए आपकी. When we introduce new products, याद रखिए हमारे पास दो approaches हैं. Either price skimming या फिर market penetration. What is market penetration? Sell the product at relatively less price as compared to your competitors. What is price skimming? Sell the product initially at a higher price. लेकिन इसके साथ big if सुनिए. You can only do that if there are no close competitors. If there are no close competitors, customer को product awareness नहीं है और वो आपको initially एक high price देने के लिए तैयार होगा. तो ये याद रखिएगा, सिनेरियो में अगर कहीं आपको इंटरप्रिटेशन करनी पड़ जाए तो प्राइस स्किमिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? इनिशियल हाई प्राइस, लेकिन कब? जब कस्टमर को पूरी वैल्यू एडिशन की अवेयरनेस नहीं है और इसीलिए वो एक हायर प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाता है फॉर द प्रोडक्ट. एंड ये भी याद रखिए, प्राइस स्किमिंग इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी. जैसे जैसे कंपेटिटर्स इंडस्ट्री में आते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है, द कंपनी हैज टू गो डाउन टू लोअर प्राइसेस.
So price skimming is a very short-term strategy, and usually we use it at the initial stage or the gestation stage of the product. तो अगर ये केस स्टडी किसी और फॉर्म में आ जाती है और नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो ऑप्शन 2 ही है. देन यहां हमें अब इसका एनालिसिस करना है कि इस कंपनी की जो लो ग्रोथ है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ जो हासिल नहीं हो रही, उसकी वजह इसकी प्राइस नहीं है. ये आपको सारे केस स्टडी से हमें नजर आ जाएगा कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है वो उसकी फीचर ये नहीं है कि कंपनी की प्राइसिंग ठीक नहीं है. कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है. वो एक डिफरेंशिएटेड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है एट अ लोअर प्राइस. तो हमने तो बताना था ये सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे हासिल करें. तो हमने कहा प्रोडक्ट फीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएटेड है. प्राइसिंग में इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइसिंग इज राइट, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं. वील सी द प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स. अब आइए इसकी प्लेसमेंट. एज यूजुअल इसके जो ब्लैक में पॉइंट्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द केस स्टडी एंड द रेड पॉइंट्स आर आर इंटरप्रिटेशन. पहला क्या है कि इसकी करंट प्लेसमेंट प्रोडक्ट की क्या थी? प्रोमिनेंट सुपरमार्केट स्टोर्स. दे वर ऑल्सो ऑफरिंग फ्री होम डिलीवरी of the product if it was ordered online. अब हमने इसकी जो एनालिसिस सारा करना है उसमें पहली चीज़ हमारे यहाँ पर ये आई कि हमें केस स्टडी से ये पता चला है कि बेटा कस्टमर प्रोडक्ट सिलेक्शन की डिसीजन डायरेक्टली खुद नहीं कर रहा. मैंने आपको भी क्या बताया था, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लम्बर से एडवाइस लेता है और फिर प्लम्बर डिसाइड करता है व्हाट सॉर्ट ऑफ फिटिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो इसका जो एंड यूजर है प्रॉब्ली अगर हम उसको टारगेट कर रहे हैं तो वो सही शायद टारगेट ना हो. अभी हम प्लेसमेंट की बात करें फिलहाल. फिर और क्या है? द प्लम्बर्स बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द नेबरहुड स्टोर्स दे आर एसोसिएटेड विद. अब प्लम्बर भी जाकर इसको वैसे नहीं खरीदेगा, वो कहां से खरीदेगा? जिस स्टोर के साथ वो एसोसिएटेड है. तो हमें प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कहां करनी है? जहां पर वाकई हमारा वो नीश कस्टमर बैठा हुआ है, दैट इज अ प्लम्बर. हमारा कस्टमर वो एंड यूजर वो नहीं है, हाउस जो घर जिसके लिए घर है. हमारा कस्टमर जो डायरेक्टली नीश कस्टमर है, दैट इज दैट प्लम्बर. हमारी प्लेसमेंट उसके पास होनी चाहिए. और वो कौन सा है? जिस स्टोर के साथ वो एसोसिएटेड है. देन नीड टू बी प्लेस्ड एट द नेबरहुड शॉप्स, क्योंकि वहां पर हमारा प्लम्बर बैठा हुआ है, वो हमारा नीश कस्टमर है. Then reason why there is no sustainable growth, because the promotional campaign draws customer attention for a short time. हमारी इस कैंपेन जो है वो किसको टारगेट कर रही है? कस्टमर को. और वो कस्टमर तो हमारा वो क्या है, उसको इनिशियल थ्रस्ट मिलता है जो थोड़ा वो अपना डिसीजन कर लेता है, लेकिन इवेंचुअली हैज टू गो बैक टू द प्लम्बर. तो जो इनिशियल थ्रस्ट मिलती है वो बड़ी ही जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि वो हमारा मेन डिसीजन मेकर नहीं है. याद रखिए हमारी प्लेसमेंट और प्रमोशन स्ट्रेटेजी हमेशा होनी चाहिए हु इज आवर टारगेट कस्टमर. ये हमारा टारगेट कस्टमर नहीं था. तो हमारी प्लेसमेंट शायद उस लिहाज से गलत है. वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं होने चाहिए थे. वो कौन से होने चाहिए थे? नेबरहुड रिटेल आउटलेट्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलिए बाबर, ठीक है? आपको बेटा क्लियर है बात? अब देखिए इसकी प्रमोशन. इस वक्त इनकी एग्जिस्टिंग प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या थी? दे हैव ऑलरेडी डन सेवरल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑन टेलीविजन एंड सोशल मीडिया, जिसमें वो प्रमोट करते थे बेनिफिट्स, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. दे वर ऑल्सो सेलिंग द न्यू शावर हेड थ्रू फोन एंड ऑनलाइन चैनल्स. ऑल दिस इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल फ्रॉम द सिनेरियो. अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं. दो स्ट्रैटेजीज होती हैं बेटा प्रमोशन की. एक है पुल स्ट्रैटेजी और एक है पुश स्ट्रैटेजी. ठीक है, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं. पुल स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज टारगेटिंग द कस्टमर, पुल द कस्टमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. एंड व्हाट इज पुश स्ट्रैटेजी? इट इज ऑलवेज टारगेटिंग माय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. Push the product towards the distribution channel so that they carry your product. Look at this Pepsi and Coca-Cola. They
push the product to the retailers. Keep our maximum inventory. तो देखिए दो तरह की हमारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, पुल स्ट्रेटजी और पुश स्ट्रेटजी. मैं एक दफा फिर इसको, पुल स्ट्रेटजी इज ऑलवेज टारगेटिंग योर कस्टमर, पुल द कस्टमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. जबकि जो पुश स्ट्रेटजी है, दैट इज ऑलवेज टारगेटिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पुश द प्रोडक्ट टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन channels so that they keep your maximum products as compared to your competitor. इस वक्त कंपनी क्या यूज कर रही थी? पुल स्ट्रेटजी. क्यों? वो हाउस होल्ड कस्टमर को टारगेट कर रही थी और उनको पुल कर रही थी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. वॉज इट द राइट स्ट्रेटजी? नो. क्यों? क्या होना चाहिए था? पुश स्ट्रेटजी. इट शुड हैव यूज्ड पुश स्ट्रेटजी टुवर्ड्स व्हाट? दोज लोकल स्टोर्स. They should have pushed the product towards stores जहां पर कौन बैठा हुआ है? प्लम्बर. Rather than pulling the customer towards the product. Are you getting my point? Look at the next point. Remember, our niche customer are your plumbers. इनको टारगेट करना है हमने. Direct selling could also be appropriate. डायरेक्ट सेलिंग किसको करना है? कस्टमर को या वो प्लम्बर्स को? प्लम्बर्स को. और वो बड़े सिलेक्टेड जगह पर है. कितने होंगे? हाउस होल्ड कस्टमर तो कितना ही होगा, लेकिन वो जो रिटेल आउटलेट्स है वो चंद होंगे. सो यू कैन गो फॉर टारगेट में. एक और बात सुनिए, जब नीश मार्केट होती है ना बेटा, तो हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं. जब ब्रॉड बेस्ड मार्केट होती है तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग करना पॉसिबल नहीं होता. नीश मार्केट किसको कहते हैं? अ वेरी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. तो यहां हमारी नीश मार्केट है एंड दैट इज प्लम्बर्स. उनको डायरेक्ट सेलिंग करना आसान है. तो असूल याद रखना, वेन एवर देर इज अ नीश मार्केट यू कैन गो फॉर डायरेक्ट सेलिंग. देन पुश स्ट्रेटेजी शुड बी यूज्ड. अभी हमने डिसाइड किया है कि पुश स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, यहां आपको यूज करनी है पुश स्ट्रेटेजी. पुश द प्रोडक्ट टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. देन you have to use these marketing tools as low prices, maybe generous credit terms, to persuade the distributors to buy. What is this? This is push strategy. किसको एम कर रहा है? कि उनको जो वो डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं उनको आप कुछ इंसेंटिव दो टू बाय और कैरी योर प्रोडक्ट. उसके लिए आप उनको क्रेडिट टर्म्स बेहतर देनी पड़ेंगी, डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे. सो व्हाट आर द लेसन्स हियर? द लेसन्स हियर इज दैट you have to decide in promotion whether you require a pull strategy or you require a push strategy. तो बेटा यहाँ पर अब हम अगर सम अप कर लें, हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी सही थी, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा. कंक्लूजन में इट वॉज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इट वुड हैव सेल्ड. सो देन द प्राइस हमें नज़र आ रहा है, इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कोई गलती नहीं है. दे आर यूजिंग द राइट पेनिट्रेशन strategy. Where are the problems? The problem is in the placement and the problem is in promotion. Placement में क्या हुआ? हमने placement में उसको ऐसे stores पे रख दिया जहाँ पर हमारा वो customer नहीं बैठा हुआ जो decision making कर रहा है. और promotion में हमने क्या किया कि हमने pull strategy use की गई थी, जबकि actually यहाँ use होनी चाहिए थी push strategy. ठीक है. अब इसके अगर मैं मार्क्स को देखूं तो जरा देखिए, 1.5 marks for analyzing each existing 4 P's. How easy it is. You just have to pick up the facts from the case study. And you should know product के बाद एनालाइज करके क्या करना है कि प्रोडक्ट के फीचर्स पे कमेंट करो. ये डिफरेंशिएटेड है या किस किस्म का प्रोडक्ट है, या एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज वेरी जेनेरिक विद नो extended features. इसी तरह आपके so 6 marks are there. Then you have up to 2 marks for each corrective measures. ठीक है. So it can take you to 4 to 10 marks. और आपने देखा कि आप सिंपल था, प्रोडक्ट में तो था ही कुछ नहीं, इसलिए आपको 2 marks नजर नहीं आ रहे. प्राइस में भी कोई नजर नहीं आ रहा. 2 में था प्रमोशन एंड placement, 2 marks, that would have taken you to 4, and that is your 10 marks.
सो अगर आप इस क्वेश्चन को बज़ाहिर देखें तो ऐसा कोई इशू नहीं था इसमें. यू शुड ओनली नो हाउ टू हैंडल इट. सिर्फ फैक्ट्स नहीं निकालने, उसको एनालाइज करना है, उसको इंटरप्रिटेशन करना है कि आपके ख्याल में अब अगर ये प्रोडक्ट था तो क्या थी स्ट्रेटेजी. इसी तरह प्राइस है तो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थी, प्रमोशन है तो पुल स्ट्रेटेजी थी या पुल स्ट्रेटेजी थी. इसी तरह प्लेसमेंट है तो वो देखना था कि प्लेसमेंट सही थी या गलत थी. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू माय स्टूडेंट्स? क्लियर है बेटा? ठीक है. और ये जो एरिया मार्केटिंग का मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट में बताया, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आना है. तो ये ऐसा चैप्टर है जो आपको बड़े आराम से 10 से 15 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकता है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 4. Now, question number 4 is about a small plastic bottle making factory, जिसकी capacity है 7,000 bottles per hour, and the company is considering to implement just-in-time system. आप में से कौन बताएगा what is just-in-JIT? क्या होता है just-in-time? Absolutely. Do you keep finished goods inventory? Do you keep raw material inventory? No. So this is where you would like to eliminate your inventory stock, inventory cost. You purchase when is required. You produce when it is required. This is to eliminate inventory cost, just in time. So point number 4, buy plastic pellets when there is 1 week supply left. ये था कंपनी की एग्जिस्टिंग, कि उसका जो ओनर था वो जब जो प्लास्टिक पैलेट्स जिससे ग्रैन्यूल्स जिससे कि बॉटल बनती है उसको ख़रीदने जाता था मार्केट से, जब 1 हफ्ते की सप्लाई उसके पास बच जाती थी. यही कंपनी अब JIT पे जाना चाहती है. ठीक है. पॉइंट नंबर 5, अब इसके प्रोडक्शन प्रोसेस को बड़ी डिटेल में इस केस स्टडी के अंदर बताया गया कैसे बॉटल्स को बनाया जाता है. तो बेटा इस प्लास्टिक पैलेट से सबसे पहले बनती है एक प्री फॉर्म, एक ट्यूब सी होती है प्री फॉर्म, जो बॉटल की शक्ल नहीं होती, छोटी सी इतनी ट्यूब में कन्वर्ट है. फिर इसके बाद इस ट्यूब फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है थ्रू अ मोल्ड इनटू एन एक्चुअल बॉटल. तो 2 लेयर का है प्रोसेस. सबसे पहले इसमें बनाई जाती हैं प्री फॉर्म्स और इसके बाद इस प्री फॉर्म से मोल्ड्स के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है बॉटल. तो पॉइंट नंबर 5 देखिए, द प्री फॉर्म्स दैट मीट रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड आर केप्ट इन द प्रोसेस एंड अदर्स आर स्क्रैप्ड अवे एज वेस्ट. आपको बड़ा पर्पसफुली बताया गया कि वेस्ट मटेरियल्स कहां हैं. पहले लेयर पर कुछ मोल्ड ऐसे हैं प्री फॉर्म जिनमें हमें वेस्टेज फेस करनी पड़ रही है, वी हैव टू रिमूव दैट. फिर पॉइंट नंबर 6, इसमें रैंडम क्वालिटी चेक्स हैं, सारों को नहीं किया जा सकता. पॉइंट नंबर 7 क्या है, अब जब फाइनल बॉटल बन जाती है देन वी गो फॉर डिटेक्शन ऑफ अ फॉल्ट. द एंटायर कंसाइनमेंट ऑफ द कस्टमर इज चेक्ड इफ देयर इज अ फॉल्ट एंड द फॉल्टी बॉटल्स आर स्क्रैप्ड अवे एज वेस्ट. तो प्रोसेस में बेटा 2 लेयर प्रोसेस है. हमें समझना होगा कि 2 लेवल पर वेस्टेज हो रही थी फिलहाल. पहले प्रीफॉर्म्स लेवल पर, फिर जब बॉटल फाइनल मैन्युफैक्चर होती तो उसमें हम रैंडम चेक्स करते थे और अगर कहीं डिफेक्ट निकल आए तो हम पूरी कंसाइनमेंट का फिर डिटेल ऑडिट करते थे और फिर उसमें से जो भी हमारे पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स थी उन्हें हम स्क्रैप आउट करते थे. ठीक है. ये कंपनी इस वक्त अब किस पर जा रही है, दैट इज जस्ट इन टाइम. ये जो मैंने आपको बताया कि बॉटल नेक्स हैं, जस्ट इन टाइम में ये अफोर्ड नहीं कर सकते. जस्ट इन टाइम में यू कैन नॉट अफोर्ड, यू हैव टू बेस इट ऑन व्हाट, 0 डिफेक्ट्स. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है. अच्छा, एक चीज और बताइए, इस वक्त जो कंपनी परचेज पॉलिसी है, क्या आपका ख्याल है उसमें कंपनी के पास कोई एक अच्छे सप्लाई चेन है एज फार एज रॉ मटेरियल परचेज इज कंसर्न? अभी मैंने आपको क्या बताया, 1 हफ्ते की जब सप्लाई रह जाती है तो उसका ओनर मार्केट जाता है और मार्केट से ओपन मार्केट से खरीदता है. तो डू यू थिंक देयर इज अ कंफर्म्ड सप्लाई चेन एज वेल एज बैकवर्ड चैनल इज कंसर्न? नहीं.
JIT में ऐसा नहीं हो सकता. You got to have a very good supply network. इसी तरह प्रोसेस के अंदर क्या 2 लेयर्स है, हमें डिफेक्ट्स नजर आ रहे हैं. JIT में हम ये डिफेक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. आइए देखें अब क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है. अब देखिए 2 वर्ब्स बेटा यूज हो रहे हैं और हमें डेफिनेटली अपने सोल्यूशन में आइडेंटिफाई को अलग दिखाना है और एक्सप्लेन को अलग दिखाना है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एंड रिलेट तीसरा भी आ गया. आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो और रिलेट करो. किससे रिलेट करो? केस स्टडी से, के फैक्ट से. द टाइप्स ऑफ क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट दैट आर इनकर्ड बाय द कंपनी. थ्योरी के अंदर हमें बताया गया है कि व्हाट आर द क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट. ऑपरेशन मैनेजमेंट के चैप्टर में हमें क्लियरली बताया गया है क्वालिटी के अंदर व्हाट आर द क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट. मैं उस पर जा रहा हूं पहले और फिर मैं मार्किंग क्राइटेरिया पर आऊंगा. देयर आर 4. वी हैव द प्रिवेंशन कॉस्ट कि हमने क्वालिटी वी हैव टू प्रिवेंट 0 डिफेक्ट्स. प्रिवेंट करना है कि डिफेक्ट्स अकर ना हो, उस पर हमारे एक कॉस्ट लगेगी. व्हाट इज द सेकेंड? द अप्रेजल कॉस्ट टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स. व्हाट इज द थर्ड? इंटरनल फेलियर कॉस्ट. अब नेचुरली बेटा जो चीज वेस्ट हो जाएगी उसके लिए हमें दोबारा करना पड़ेगा, रिडंडेंसी है. फिर वो जो वेस्ट हुआ है उसकी कॉस्ट अलग है. तो देयर इज इंटरनल फेलियर. तो पहली है प्रिवेंशन, दूसरी है अप्रेजल डिटेक्शन, तीसरी क्या है? इंटरनल फेलियर कॉस्ट, वी हैव टू डू इट अगेन. और चौथा क्या है? दैट इज द एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. वी मे डिले द orders to the customer. It may affect into bad repute of the company. It may affect the company goodwill. तो 4 क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट है हमारे पास. प्रिवेंशन, अप्रेजल दैट इज डिटेक्शन, then you have internal failure, and then you have the last one that is the external failure cost. अभी हम इस पर और बात करेंगे, अभी मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई किया. आइए जरा मार्किंग क्राइटेरिया देखें. 0.5 marks for identification of the quality cost. How many were there? 4. How many marks? 2. कोई वजह है कि ये मार्क्स स्कोर ना हो? सिर्फ आइडेंटिफाई करना है यार. And 0.5. There is the throwaway marks here. We should know where are the marks. Simple identify करना. Give headings and you are identifying them. 0.5 marks for explaining the quality cost. देखिए 2 अगेन. ये जो पहले 4 है ये तो गिव अवे है. आइडेंटिफाई कर दो और अभी हमने मुख्तसर अल्फाज में उसको बता भी दिया कि ये कॉस्ट क्या है. लेकिन ट्रिक क्या है? आइडेंटिफाई अलग करो और उसको एक्सप्लेन अलग करो. क्या गलती कर सकते हैं? हमने एक सेंटेंस शुरू कर दिया बगैर आइडेंटिफाई किए, हेडिंग दिए हुए. भाई पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो, एक अच्छी हेडिंग दे दो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो. फिर up to 0.7 marks for relating the incurred cost to the identified quality cost. अब सिनेरियो पर आ जाओ. कहां पर प्रिवेंशन कॉस्ट कंपनी कर रही है, क्या क्या है, क्या उसकी इंप्लीकेशंस है. अप्रेजल कॉस्ट कहां पर हो रही है, एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है. अब उसको बाकी हमने रिलेट करना है विद एग्जाम्पल. तो देखो वहां पर 0.5 थे यहां पर, और यहां पर अब 0.75 है ईच. मेरे अपने नजदीक अगर एक स्टूडेंट ये पहला काम कर लेता है तो बाकी 6 मार्क्स उसके लिए बहुत आसान है. इफ ही नोज व्हाट आर द 4 क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट्स. ठीक है, आइए चलते हैं आगे. नाउ दिस इज द प्रिवेंशन कॉस्ट. सबसे पहले हमने ये बता दिया कि ये कॉस्ट है क्या, जो उसने कहा कि जी एक्सप्लेन कर दो. दीज आर कॉस्ट of action to prevent defects. They are cost incurred to prevent a quality problem from arising. This is quality assurance, 0 defects. The cost includes working with the state-of-art machinery that work with plastic pellets. एक ऐसी state-of-art machinery लो जिसके प्रोसेस के अंदर इनबिल्ट हो क्वालिटी.
इनबिल्ट क्वालिटी का क्या मतलब है? जीरो डिफेक्ट्स। तो पहला क्या है, प्रिवेंशन कॉस्ट के लिए आपको, प्रिवेंशन कॉस्ट को अगर आपने सेव करना है तो यू मस्ट इन्वेस्ट इन एन टेक्नोलॉजी विच गिविंग यू जीरो डिफेक्ट्स। और याद रखिए वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी कैपिटल कॉस्ट है, वो आपकी रेवेन्यू कॉस्ट नहीं, लेकिन प्रिवेंशन कॉस्ट रेवेन्यू होगी, वो आपके प्रॉफिट्स को जाके अफेक्ट करेगी। जी, कम अगेन। हो सकते, देखिए मैं इस वक्त बात कर रहा हूं इस केस स्टडी की मुनासबत से, हाँ पैलेट्स में, लेकिन हमें कहीं नहीं बताया गया कि उसके रॉ मटेरियल की क्वालिटी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, हमें उसके प्रोसेसेस के लिए प्रॉब्लम बताया गया। किस तरह? पहला बताया गया कि जो प्री फॉर्म्स हैं वहाँ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, दूसरा बताया गया कि जो फाइनल बॉटल बनती है उसमें डिफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं आपकी बात लूँ तो जर्नल थ्योरी में ये जरिए है, हो सकता है कि ये प्रिवेंशन कॉस्ट में रॉ मटेरियल की वजह से हो, हम वी आर नॉट हैव अ राइट सप्लायर, वी मे नॉट हैव द राइट क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, तो हो सकता है। लेकिन इस केस स्टडी की मुनासबत से अगर मैं बात करूं तो वहां ये परचेज या प्रोक्योरमेंट की प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रही, बट कॉन्सेप्चुअली यू आर वेरी राइट। ठीक है बेटा, अब देखिए अप्रेजल कॉस्ट, पहले पॉइंट में हम इसको आइडेंटिफाई एक्सप्लेन कर रहे हैं। देयर आर कॉस्ट ऑफ चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क डन, एंड दिस इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। वो जो भी हमारी कंसाइनमेंट प्रोड्यूसर्स को हम टेस्ट कर रहे हैं, उसका क्वालिटी चेक कर रहे हैं, दैट इज योर अप्रेजल कॉस्ट। दो जगह पर हम ये अप्रेजल कॉस्ट कर रहे हैं, वन चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रीफॉर्म्स एंड वन व्हेन वी आर चेकिंग द फिनिश्ड बॉटल्स। There's a power failure, so those who are online, if जी बेटा, जी ऑलरेडी हो चुकी है, फेसबुक पे जा है, वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां पे ऑलरेडी है। ठीक है, वी आर ऑन। ओके, सो देखिए पहले पॉइंट में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया आइडेंटिफाई करने के बाद, और पॉइंट 2 पर हमने क्या किया, उसको रिलेट कर दिया विद केस स्टडी के ये कॉस्ट कहां पर इनकर हो रही है। तीसरी थी हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इनकर्ड व्हेन डिफेक्टिव प्रोडक्शन अकर्स। तो नेचुरली अब जो डिफेक्ट आए उसको रिमूव तो करना है। अब यहां पर क्या है, internal failure will include cost of brushing off substandard preforms as waste। तो पहले तो वो जो preform scrap होंगे वो हमारी internal failure cost है। फिर scrapping off the faulty bottles, और तीसरा क्या है कि हमें extra production time काम करना पड़ेगा to fulfill our orders। तो 3 internal failure cost हम यहां पर incur कर रहे हैं। पहला, हम स्क्रैप कर रहे हैं प्रीफॉर्म्स। इससे व्हाट आर द लेसन्स टू लर्न? वी हैव टू करेक्ट दोज फॉल्ट्स, एंड वेन एवर वी करेक्ट फॉल्ट्स वट एवर इट माइट बी, दैट इज योर इंटरनल फेलियर कॉस्ट। सो बेटा प्रिवेंशन कॉस्ट का ताल्लुक किस चीज से है? टू इंश्योर दैट द प्रॉब्लम्स डू नॉट अकर एंड वी हैव जीरो डिफेक्ट्स। सेकेंड, अप्रेजल कॉस्ट, इट इज टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स। केस स्टडी से रेट करना है, कहां पर कर रहे हैं? एक प्रीफॉर्म्स पर और एक बॉटल्स पर। थर्ड इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट, दैट इज करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स। कहां पर हो रहे हैं? एक तो जो हमने प्रीफॉर्म्स को स्क्रैप किया, दूसरा जहां हमने बॉटल्स को स्क्रैप किया, और तीसरा ये कि स्क्रैप करने के बाद बात यह कि हमें एडिशनल प्रोड्यूस करना है, एडिशनल प्रोडक्शन करनी है टू मीट आवर ऑर्डर्स डिमांड। Then finally we have the external failure cost, and that is where you have the quality problems after the goods have been delivered to the customer। अगर वो हम बीच में, तवज्जो से सुनना, अगर बेटा हम यहाँ पर ये प्रिवेंशन कॉस्ट कहीं नेगलेक्ट कर जाएं या इंटरनल
फेलियर कॉस्ट या अप्रेजल कॉस्ट पे कहीं हम इस नेग्लिजेंस कर जाएं, व्हाट विल हैपन? द डिफेक्ट विल बी डिटेक्टेड व्हेन द कस्टमर यूजर रिसीव्स द प्रोडक्ट, and that where we have to incur a very heavy cost, which is the external failure cost, and that is यहाँ पर the goods have been when the goods have been delivered to the customer. यहाँ हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई कि कस्टमर ने कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट किया है. So probably there are no such cost reported in the case study. Yes, there is reported prevention cost, there is reported appraisal cost, there is a purported internal failure cost, but scenario में हमें कोई fact नहीं दिया गया for external failure cost. और वो क्या होता? If the defective cost went through our system, the customer receives it, and then he identifies that defect, that may affect into result of repute, goodwill. You got my point? बोलिए. ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं. The question said, identify कर लिया हमने अलग, explain अभी हमने जो देखा उसमें पहले सेंटेंस में आइडेंटिफाई किया कि भाई प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है, डिटेक्शन कॉस्ट क्या है, एंड सो ऑन. और फिर तीसरे में हमने उसे क्या किया, दैट इज टू लेट. आई वांट कि जब आप सोल्यूशन लिखें तो ये तीनों अलग अलग एग्जामिनर को नजर आए, उसके लिए कन्वीनियंट बनाएं कि आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है, एक्सप्लेनेशन भी हो रही है और रिलेट भी कर रहे हैं. बेशक छोटी छोटी सब हेडिंग्स बनाएं, but it should be very, very convenient for your examiner. Have you made my point clear to everyone? बोलिए. ठीक है बाबा? Okay, बेटा. अब देखते हैं इसका part B. In the light of practical implications of JIT system, assess KB's readiness, indicating clearly whether KB meets the essentials of JIT system or not. अब ये सवाल आपको क्या बता रहा है? जीआईटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले आपके पास कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं. अगर वो प्री रिक्विजिट्स नहीं हैं तो जीआईटी अपने बेनिफिट्स को डिलीवर नहीं करेगा. ये सारा क्वेश्चन फोकस कर रहा है नॉट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ जीआईटी, इट इज द रिक्विजिट्स ऑफ जीआईटी. ऑल्सो रिकमेंड पॉसिबल करेक्टिव मेजर्स टू केबी वेयर एसेंशियल्स आर नॉट मेट. वो कहता है पहले तो बता दो कौन से एसेंशियल्स हैं, अगर नहीं हैं तो बताओ क्या करना है. वेयर आर द मार्क्स? मार्किंग क्राइटेरिया देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 mark फॉर स्टेटिंग ईच प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट ऑफ जेआईटी सिस्टम. आप देखेंगे देयर आर 3, सो इट इज 1 mark ईच. और जो थ्योरी पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं उनको पता होगा वहां पर कि वो 3 हैं essentials. So it's 1 mark each, that is for stating, just stating that. Then 1 mark for assessment of each essential. That is कि हमारी कंपनी उस essential को पूरा कर रही है या नहीं. 3 marks again. And then 2 marks for making recommendation. And that means कि 3 में से 1 होगा और 2 नहीं होंगे. You see, that's where we know where the marks are. तो अगर हमें किसी स्टूडेंट को ये पता है कि हाउ मेनी आर एसेंशियल्स, उसका सवाल हो गया. क्योंकि उसे पता 3 मैंने आइडेंटिफाई करने हैं, 3 मैंने उसको असेसमेंट कर देनी है. उससे बाकी जब उसके बाद 6 और 8 नंबर का सवाल था, 2 बचे, तो उसको वहां से गैस हो गया कि अब इसमें 2 में तो प्रॉब्लम होगा और 1 में शायद उसको इश्यूज नहीं होंगे, वहां पर एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं. ठीक है, मार्किंग क्राइटेरिया समझ आ गया. अब आइए जरा देखते हैं what are the JIT. First, highly efficient and high quality production. जो हम टेक्नोलॉजी से पूरा करते हैं, इसमें बॉटलनेक्स नहीं होने चाहिए. कन्वेयर बेल्ट्स पे या किसी भी प्रोसेस में कहीं पर JIT में ये नहीं कि वहाँ पर आपका प्रोडक्शन के बॉटलनेक्स आ जाएं. क्योंकि अगर JIT में एक जगह बॉटलनेक आएगा तो पीछे जो सारा प्रोसेस है वो रुक जाएगा. Let's suppose you are producing Coca-Cola bottles. I'm just taking an example. कि वहाँ पर कहीं कन्वेयर बेल्ट पे रुक गया, कोई आगे से मशीन ख़राब हो गई, तो उसके पीछे सारा जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा.
तो पहली रिक्वायरमेंट जेआईटी का है एन एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम वेयर देयर आर नो बॉटलनेक्स एंड द प्रोसेस will go from inputs to the finished goods without any issues. Second, efficient and reliable supply arrangements with the key suppliers. बेटा raw material quality check generally किसकी responsibility होती है? Producer की. When he receives the raw material, he checks the quality and then uses it. But GIT में किसकी responsibility होती है? Supplier की. वो quality check करे और हमें एक एफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड करे, बिकॉज हमारा काम क्या है? रिसीव, यूज. हमने अपनी कॉस्ट का बर्डन किस पर डाला है? सप्लायर पर. उससे कहा है कि जी हमें क्वालिटी चेक करके एक एरर फ्री प्रोडक्ट सप्लाई कर दो. तो अच्छा प्रोडक्शन सिस्टम, देन एन एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम, सप्लाई. देन थर्ड, for successful GIT purchasing, there must be an excellent relationship with the suppliers. एक supplier पर डिपेंड ना करें, आपके पास 2-3 डिपेंडेंसीज हों, रिलेशनशिप अच्छे हों, कहीं पर कोई बॉटलनेक्स ना हो, तो हमारे पास एक रिलायबल सप्लाई भी हो, एफिशिएंट, और फिर हमारे जो रिलेशनशिप है सप्लायर्स के साथ वो इंपॉर्टेंट. प्रॉबेबली इस सारों में से ये मेरे लिए सबसे अहम होता है कि वो जो बैकवर्ड हमारी इंटीग्रेशन है विद सप्लायर्स, दे हैव टू बी ऑफ द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी, और फिर उसके बाद देयर शुड बी गुड प्रोडक्शन. जी बेटा. जीआईटी में नहीं होता बेटा. जीआईटी में इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द ऑर्डर. बट व्हेन वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग फॉर द ऑर्डर एंड वी आर जस्ट मेंटेनिंग एन ओपन इन्वेंट्री, देन वी हैव दिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. उसमें हमारे पहले सेफ्टी स्टॉक्स लेवल्स हैं. जैसे हम सेफ्टी स्टॉक लेवल पे पहुंचते हैं, फिर हम ईओक्यू में क्वांटिटी प्लेस करते हैं. यहाँ तो हमने सेफ्टी स्टॉक रखना ही नहीं, यहाँ तो हमने इन्वेंट्री फ्री जाना है, और हमें ऑर्डर की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा हम क्या ऑर्डर प्लेस करते हैं. अब आइए पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं, इसका क्या है. द प्रोडक्शन टाइम्स may be very fast. If there is no inventory of finished good, production has to be fast in order to meet new customer orders quickly. पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? द प्रोडक्शन सिस्टम हैज टू बी वेरी फास्ट. जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आए हम फौरी तौर पर उसको डिलीवर करें. असेसमेंट क्या है? क्या कंपनी के पास ये अवेलेबल है या नहीं? हमें पूरे केस स्टडी में कहीं ऐसा नहीं मिला, बल्कि एक वाज़े लिखा है कस्टमर ऑर्डर्स वर मेट ऑन टाइम. तो इसका मतलब है ये जो एसेंशियल है ये पूरा हो रहा है कि एक प्रोडक्शन सिस्टम में हमारे पास कोई भी बॉटलनेक्स नहीं है. ठीक है. तो पॉइंट नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या थी? एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम. पॉइंट उसको डिस्कस करने के बाद हमने बताया उसकी असेसमेंट कर दी, और असेसमेंट क्या की कि करंट केस स्टडी में हमें कहीं नजर नहीं आया कि द ऑर्डर्स वर डिलेड टू द कस्टमर. इससे हम असेस कर रहे हैं कि यहां पर बॉटलनेक्स नहीं है. याद है ना, 3 में से 2 खराब होंगे और 1 ठीक है, तो ये पहला ठीक आ गया. यहां हमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है. अब आइए दूसरे में. दूसरा क्या कहता है? द प्रोडक्शन मस्ट बी रिलायबल एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी होल्ड अप, स्टॉपेजेस और बॉटलनेक्स. पुअर क्वालिटी पर लीडिंग टू रिजेक्टेड आइटम स्क्रैप इज अनएक्सेप्टेबल. वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. मेन यहां पर है कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए जस्ट इन टाइम में, क्योंकि ये आप पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. यहां मेन पॉइंट क्या है? देयर शुड नॉट बी एनी वेस्टेज. अब यहां हमें नजर आ रहा है असेसमेंट क्या है. एट प्रेजेंट 2 जगह पर चीजें स्क्रैप हो रही हैं, एक प्री मोल्ड्स और दूसरा बॉटल्स. तो क्या सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? एसेंशियल पूरा हो रहा है? सेकंड एसेंशियल पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा. प्रोडक्शन सिस्टम है वो एफिशिएंट है, क्यों? कोई ऑर्डर डिले नहीं हुआ. दूसरा हम क्या कह रहे हैं? वेस्टेज हो रही है, और उसके लिए कंपनी इंटरनल कॉस्ट भी इनकर कर रही है. किस तरीके से? डिले नहीं होने देना, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करो, टाइम एक्स्ट्रा आवर्स में जाके प्रोड्यूस करो, इसलिए ऑर्डर्स डिले नहीं हो रहे. व्हाट इज द रिकमेंडेशन? Khalid, first you have to assess what are the reasons for the fault and remove those faults from your processes. क्या वो ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स की वजह से है? किस वजह से है? उस फॉल्ट को रिमूव करो, because there should not be any scraps. You must find out
वाई देयर आर दीज फॉल्ट्स, प्री मोड्स में भी और बॉटल में, उन पर फोकस करो और उन फॉल्ट्स को, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करो। वो हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द रिकमेंडेशंस। इसी तरह जो एक प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ केजान, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ केजान? प्रिंसिपल ऑफ केजान सेज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। मेरी बात तो वजह सुनिएगा, आप किसी कोर्स में एक है, जब हम स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे होते हैं, वन थिंग इज बिजनेस प्रोसेस चेंज, ठीक है। अब जब आप पढ़ेंगे कोर्स को आगे बुक में और उसके पढ़ेंगे तो उसमें एक पूरा चैप्टर का हिस्सा आता है विच इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस चेंज। मैं उसको थोड़ा सा रिलेट कर दूं। स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहला काम है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। व्हाट इज माय स्वॉट, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, what are my weaknesses, what are my opportunities, what are my threats। जब हम SWOT को डिटरमिन कर लेते हैं, फिर अगला काम है जनरेट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। द मॉडल्स लाइक एनसॉफ, द मॉडल्स लाइक पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज, वो मुझे बताते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस। और फिर ऑप्शंस में से हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको लाना चाह रहा हूं दिस वर्ड केजान। उस ऑप्शंस में से किसी हम एक को सिलेक्ट करते हैं और जो मॉडल है आपके कोर्स के अंदर दैट इज सैफ, सुटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी। उन सारी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को 3 ग्राउंड्स पर हम कंपेयर करते हैं, सुटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फिजिबिलिटी, सैफ। और इसकी बेसिस पर हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब स्ट्रेटजी सेलेक्ट हो गई, अब है उसकी इंप्लीमेंटेशन। सो वी हैव स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन। स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन हो गई, अब है उसकी इंप्लीमेंटेशन। और इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरी है? नंबर 1 स्ट्रक्चर में चेंज लेके आओ, सेकेंड प्रोसेस में चेंज लेके आओ। और प्रोसेस चेंज के अंदर आपको टर्म्स पढ़नी है लाइक बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसी प्रोसेस चेंज के अंदर आप एक टर्म पढ़ेंगे केजान, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत वजह से नहीं है। सैमसंग, आई एम श्योर एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट दिस कंपनी। बेटा सैमसंग में एक वक्त में 20,000 टीम्स काम कर रही हैं ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट। 20,000 टीम्स, व्हाट आर दे डूइंग? एक प्रोसेस पे जाके बैठे, उसको स्टडी किया, उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आए। दे लीव, नेक्स्ट टीम वॉक्स इन, कैन वी फर्दर इंप्रूव इट? दे आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज केजान, अ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। और यही यहां पर वो रिकमेंडेशन कह रहा है, फॉल्ट निकालो और फॉल्ट निकालने के बाद कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करते चले जाओ। इट शुड नॉट स्टॉप देयर। क्यों? प्रॉब्लम्स अपनी शक्ल चेंज करते हैं, फॉल्ट्स अपनी शक्ल चेंज करते हैं। कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस इंप्रूवमेंट करते चले जाओ until you arrive where there is absolutely no defects। तो बताइए क्या ये सेकंड एसेंशियल पूरा हो रहा है? सेकंड एसेंशियल भी हमारा पूरा नहीं हो रहा। तो हमारा पहला एसेंशियल पूरा होता है, सेकंड भी पूरा नहीं हो रहा, और थर्ड जो है दैट इज अ रिलायबल सप्लाई फ्रॉम द सप्लायर्स, कि कहीं पर बॉटलनेक हमारे सप्लायर के साथ नहीं होने चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले में हमने देख लिया कि प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे पास कोई इशू हमारे पास नहीं आ रहा, कोई ऐसा रिपोर्टेड नहीं है कहेंगे बॉटलनेक्स हो और कस्टमर को ऑर्डर्स डिले हो रहे हो। हमने कहा ये एसेंशियल पूरा हो रहा है जी। दूसरा हमने कहा कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो हमने कहा यहाँ वेस्टेज हो रही है, यहाँ पर मोल्ड्स की भी वेस्टेज हो रही है और यहाँ पर बॉटल्स की भी वेस्टेज, ये एसेंशियल पूरा नहीं हो रहा। हमने कहा फॉल्ट की वजह ढूंढो, उन फॉल्ट्स को रिमूव करो और फिर एक केजान अप्रोच के थ्रू कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट लेकर आओ अपने प्रोसेस में। सेकेंड एसेंशियल पूरा नहीं हो रहा। देन थर्ड सेज दैट इज डिलीवरीज फ्रॉम द सप्लायर्स, दे मस्ट बी वेरी रिप्लाई। अब हम बैकवर्ड चले गए, सप्लायर के साथ कहीं पर हमारे पास बॉटलनेक्स
नहीं होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था, आपने जवाब दिया था हमारा सप्लायर्स के साथ कोई रेगुलर अरेंजमेंट्स नहीं है। जब एक हफ्ते की सप्लाई रह जाती है तो मार्केट में जाता है ओनर और वहाँ से ओपन मार्केट से ख़रीदता है। हमारे कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुए विथ सप्लायर्स। तो बताइए क्या ये थर्ड एसेंशियल पूरा हो रहा है जीआईटी का? नहीं। और क्या रिकमेंडेशन है? रिकमेंडेशन ये है दैट वी मस्ट एस्टैब्लिश कॉन्ट्रैक्ट्स विद आवर सप्लायर्स, जिनसे हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई आती चली जाए और हमारे डिपेंडेंसी एक सप्लायर पर ना हो, हम मल्टीपल सप्लायर्स लेकिन कम से कम, ताकि रिलेशनशिप अच्छे हों, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करें और एक कॉन्टिन्यूस और एक क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में कंसिस्टेंसी हमारे पास सप्लायर्स का नेटवर्क अवेलेबल हो। तो बेटा इस सवाल को अगर मैं अब मार्क्स के लिहाज से देखूं तो पहले 3 मार्क्स हमें यहां पर मिल रहे हैं फॉर आइडेंटिफाइंग दीज डिफेक्ट्स, फिर 3 मार्क्स हमें मिल रहे हैं असेसमेंट के, वो यहां हमने असेसमेंट की 1, 2 एंड 3, और फिर 2 मार्क्स मिल रहे हैं हमें ऑन सजेस्टिंग हाउ टू इम्प्रूव। वो 2 मार्क्स क्यों हैं? क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई इश्यूज नहीं थे, दूसरे में हमारे पास 2 इश्यूज थे, हमने कहा इनको हम इम्प्रूव करेंगे। दिस इज वेयर द मार्क्स आर। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? ठीक है। अगेन बेटा द स्किल इज टू नो वेयर आर द मार्क्स। एकदम लिखने ना बैठ जाओ, अपना एक प्लान बनाओ कि यार मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मार्क्स हैं कहाँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उसको कि यार 10 नंबर का सवाल उसने क्यों दिया है, वर्ब कौन सा यूज किया है, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड रिलेट। ओके, वेयर आर द मार्क्स, हाउ मैनी फॉर आइडेंटिफाई। जल्दी आपने क्या देखा है, गौर से सुनना, आइडेंटिफाई के 0.5 मार्क्स हैं, एक्सप्लेन के कितने मार्क्स हैं 0.5, रिलेट के कितने हैं 0.75। देखने वाली बात यह कि आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन के वो 0.5 ही दे रहा ज़्यादातर, और रिलेट के मार्क्स और 0.75 से 1 तक दे सकता है। तो मेजर मार्क्स आपके उस पोर्शन में है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए प्लान के मुताबिक वेयर आर द मार्क्स इन माई क्वेश्चन। डोंट स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग। जैसे शायर के ऊपर आमद होती है ना, तो वो लिखना शुरू कर देता है और गिरा से गिरा बांधता चला जाता है। तो यहां पर वो नहीं करना, आपने पूरा एक प्लान बनाइए और उसके आंसर प्लान करके लिखें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। Now this is on IT, और मैंने ये बताया कि ये वो जो चैप्टर है ये लाजमी टेस्ट हो रहा है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें बेटा नई डाली गई हैं। लाइक यू हैव बिग डेटा, अभी इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। व्हाट इज़ बिग डेटा हम अभी देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ये जो आखिरी पोर्शन है इस चैप्टर का, इन 3 में से कोई एक चीज जरूर आएगी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, इन पर आपने फोकस लाजमी करना। आइए देखें ये क्वेश्चन केस स्टडी किस चीज के मुतालिक है। दिस इज अ लीडिंग पब्लिशर हु स्पेशलाइजेस in printing periodical newsletters and the journals। तो अभी इस वक्त वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में है। Their sales were made through news agents and bookstores in the country। जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो सारी कंपनी खुद बेयर कर रही है। वो जो न्यूज़ एजेंट्स के पास पहुंचाने हैं जर्नल्स या बुक स्टोर्स तक पहुंचाने हैं, वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंपनी खुद बेयर कर रही है। बेटा एक्चुअली इन्होंने किस चीज़ पर लेके जाना है आपको, ई पर, ई ऑपरेशंस। तो नेचुरली ई ऑपरेशंस में वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो अपना साथ साथ ज़हन भी हम बना रहे हैं कि ई पब्लिशिंग पर जाना है तो नेचुरली वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी, जो इस वक्त सारे हम बेयर कर रहे हैं। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और इसके रॉ मटेरियल क्या है, द पाइन वुड, एंड दैट पाइन वुड इज बिकमिंग स्केयर इन द कंट्री, स्केर्स। मुझे ये बताइए, यूज ऑफ वुड फॉर पेपर, एक तो ये कि वो स्केर्स हो रही है, इज देयर एनी अदर इशू रिलेटेड विद इट?
We use wood to produce paper. Is there any other issue that comes to your mind? Sorry? Cost तो बेटा लगती है, and that is environmental issues. कि we are cutting down the trees, so there will be. क्यों हम paper free environment में जाते हैं? Paper free environment इसलिए कि we don't have to cut trees, so that there is no environmental issue associated. तो naturally अगर हम e operations की तरफ जाते हैं तो हमारे ऊपर एक pressure क्या है? We are using that pine wood which is already scarce. Then distribution cost over the last few years they have increased. इसने हमारे पर और pressure डाला हुआ है कि we must go for e-operations. There is increase in demand for online publication. जो एक local culture है वो change हो गया है और लोग वो printed material demand करने के बजाय अब online publications demand कर रहे हैं. हम यहाँ पर assess क्या कर रहे हैं? Why we should go for e-operations? अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा लेकिन मेरा एक जहन प्रिपेयर हो रहा है इस केस स्टडी को पढ़ के कि यार क्या ई ऑपरेशंस की तरफ क्यों जाना है हमने. सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन्स हैव डिक्लाइंड. जो एग्जिस्टिंग है, क्यों सेल्स मार्जिन डिक्रीज हुए हैं बेटा? यहां पर इसके अंदर हमारे सामने है. देखो पहले तो ऑनलाइन पब्लिशिंग की डिमांड बढ़ रही है, उससे हो सकता है हमारा रेवेन्यू कम हो गया हो. दूसरा वो स्केर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट है जो बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कम हो रहे हैं. सॉरी जी, हाँ, यस एब्सोल्युटली राइट. और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है. देन टू मेन कंपेटिटर्स हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड ई बिजनेस मॉडल एंड नाउ आर ऑफरिंग हैवी डिस्काउंट, सो वी आर लैगिंग बिहाइंड इन कॉम्पिटिशन. ईपी शुड स्विच टू ई बिजनेस मॉडल कंप्लीटली. ये सब केस स्टडी के अंदर फैक्ट्स दिए हमने, अब कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है. मैंने आप लोगों के लिए केस स्टडी के प्रोफाइल बना के सामने रखा है. बिग डेटा एनालिसिस कैन हेल्प ईपी टू गेन यूजफुल इनसाइट. थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ व्हाट इज दिस बिग डेटा, ये कॉन्सेप्ट क्या है. वो ये कह रहा है ये जो बिग डेटा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्पफुल हो सकता है कि व्हाट इज द डिमांड, व्हाट वी शुड बी डूइंग. अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे बेटा कि बिग डेटा क्या है, लेकिन ये केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है कि जी जो बिग डेटा अवेलेबल है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है इन फॉर्मुलेटिंग आवर स्ट्रेटेजी. इंक्रीज इन रेवेन्यूज गेट और हमारे 3 अब ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको जरा गौर से देखना है. ई बिजनेस पे जाने के लिए हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं. वी हैव टू इंक्रीज आवर रेवेन्यूज, वी हैव टू रिटेन आवर कस्टमर्स जो कि इस वक्त कम हो रहे हैं, वो किस पर शिफ्ट हो रहे हैं? ऑनलाइन. एंड वी हैव टू इंप्रूव आवर ऑपरेशंस. तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हमें केस स्टडी. अब ये मेरे पास इस केस स्टडी का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल अवेलेबल हो गया. द फैक्ट्स, आई हैव टू यूज दीज फैक्ट्स इन माय केस स्टडी. अब आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं पहला क्या कहता है. In light of factors identified in the above scenario, explain the impact of adopting e-business model at EP. अब मुझे ये बताओ बेटा, identification higher level verb है या explain higher level verb है? Explain, इसका मतलब है जब मैंने explain करना है तो identification भी करनी है साथ. So I need to first identify and then explain. It's a higher level verb. तो मुझे खुद पता है कि इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन मुझे करनी है, जबकि इससे पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई अलग लिखा था और एक्सप्लेन अलग लिखा था. जब नहीं लिखा सिर्फ एक्सप्लेन तो मुझे पहले ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करना है. वेयर आर द मार्क्स? इट इज 0.75 मार्क्स फॉर ईच फैक्टर. द टोटल आर 3 मार्क्स. ठीक है, आइए जरा देखते हैं वो क्या फैक्टर्स हैं. सबसे पहला है इम्पैक्ट, और आप देखेंगे कि कोई नई चीज नहीं है, ये सारे केस स्टडी से फैक्ट्स आ रहे हैं. पहला क्या है? वी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट. और 2 कॉस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई की थी. एक है इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड सेकेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ठीक है, हम यही बताना है.
explain the impact of e-business. तो पहला impact क्या है? We want to reduce the cost. ठीक है, और मत भूलिए अपने आप को फोकस रखेगा, सामने देखें. This is point number 12, which is most important for me. How this impact will help me in improving my operations, improving my revenues, or to retain my customers. If I was attempting this question, I would have related every point with this thing. Will it help me in increasing my revenues, retaining customers, or improving operations, maybe in terms of cost? Second, improved profits. पहला प्रॉफिट हमारा कैसे इंप्रूव होगा? नेचुरली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो हुआ, कॉस्ट हमने रिड्यूस कर ली. दूसरा क्या है? वी आर एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरीज. वो जो अब हमें उन बुक स्टोर्स के थ्रू नहीं जाना, हमें उन एजेंट्स के थ्रू नहीं जाना. विल गेट टू द कस्टमर डायरेक्टली. हम बीच में से एलिमिनेट कर रहे हैं इंटरमीडियरीज को. तो वो मार्जिन जो पहले इंटरमीडियरीज को जाते थे, अब वो हमें डायरेक्टली खुद आएंगे. डेल कंप्यूटर्स, बेटा डेल पहले अपने एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जाते थे. नाउ दे हैव गॉन फॉर डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर ऑनलाइन. तो बीच में जो इंटरमीडियरीज का मार्जिन था, नाउ दिस हैज बीन पास्ड ऑन टू द कंपनी. एप्पल, पहले इनके फ्रेंचाइज स्टोर्स थे, अब इनके अपने स्टोर्स हैं. So all those margins which are first going to the intermediaries, now they're going directly to the company. तो यहाँ हम इंटरमीडियरीज को रिमूव करें तो प्रॉफिट दो तरीके से हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा. एक कॉस्ट जो पॉइंट नंबर 1 में आ गया, दूसरा ये है वी आर बी रिमूविंग दोज इंटरमीडियरीज. तीसरा है इंक्रीज्ड रेवेन्यू. फैक्ट केस स्टडी के अंदर दिया है, इस वक्त मुल्क के अंदर कल्चर चेंज हो रहा है, और कल्चर किसका है? ट्रेंड टुवर्ड्स ऑनलाइन रीडिंग. तो हम वो काम कर रहे होंगे जो कस्टमर डिमांड कर रहा है. तो इससे लाइकली हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो कस्टमर्स जो पहले कहीं और चले गए थे, हम उनको रिटेन कर लेंगे. देन वी हैव टू अवॉइड लूजिंग फर्दर मार्केट शेयर. अगर हमने अब ना किया तो 2 कंपेटिटर्स और ऑलरेडी आ चुके हैं. If we don't do it, we will further lose our market share. तीसरा क्या है? Increased ecological concern, जो अभी हमने बात की थी, cutting down the pine trees which are already scarce. तो हम पर दूसरे ये आ सकते हैं चार्जेस इस तरह के कि हम जो environmental concerns को importance नहीं दे रहे. That's sustainable business. तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 5 बेटा हमने आइडेंटिफाई कर दिए इम्पैक्ट, 0.75 ईच. ठीक है, कैसे पता चला 0.75? द वर्ब यूज्ड इज एक्सप्लेन. ठीक है, सो अगर वर्ब आइडेंटिफाई है तो हमने कहा था 0.5, एक्सप्लेन खाली है तो 0.5. अब अगर मैं देखूं तो एक्चुअली 1 है. तो यहां से 1 से लेके 0.75 से लेके 1 मार्क्स मेरे पास अवेलेबल हैं जस्ट टू एक्सप्लेन. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, बोले बेटा. ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट वन. दिस वाज अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन. डिस्कस द ई ब्रांडिंग मेथड एज रिकमेंडेड बाय द CEO. केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है कि उसका CEO की ब्रांडिंग कैसे करना चाहता है. एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज ब्रांडिंग? That is not branding. Sorry? Okay, that is one part of branding, creating the right perception of the product in the mind. But beta, the first thing is giving it an identity, a name. Okay, when a child is born, the first thing the parents do is to brand it. Give him or her a name, so that that child is differentiated from others. When you go to market to buy sugar, we hardly call the sugar by name. We call it by its generic. वहाँ में branding की ज़रूरत नहीं है. But when we go and buy things like tea, soap, that the branding counts. We call the product by its name.
सो ब्रांडिंग, यहां हम देखते हैं कि वो द ब्रांडिंग इज टू गिव इट एन आइडेंटिफिकेशन टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स. सो यहां केस स्टडी के अंदर अभी आपके सामने फैक्ट आएगा कि उसका सीईओ कुछ रिकमेंड कर रहा है कि यार इसकी ब्रांडिंग इस तरह, उसको डिस्कस करो. फिर क्या कह रहा है, सुजेस्ट अदर वेज ऑफ ई ब्रांडिंग टू द सीईओ. एक आपको सीईओ ने बता दिया, आपने उसे बताना है कि उसकी क्या और ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है. लुक एट द मार्क्स. 1.5 फॉर एग्जिस्टिंग ई ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, उसको डिस्कस करने के लिए कि वो जो उसके सीईओ ने बताया उसको आप डिस्कस कर दें, उसके अच्छे पहलू बता दें और उसके बुरे. डिस्कस मीन ब्रिंग आउट बोथ द गुड्स एंड बैड. दूसरे 4.5, 1.5 मार्क्स फॉर ईच ऑफ द अदर ई ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज. तो इसका मतलब क्या 1 पॉइंट, कितनी ऑप्शन है हमारे पास, मजीद 3. तो जो भी इस टॉपिक को बुक में पढ़ चुका है उसे यह पता है हमारे पास 4 हैं. उसने ट्रिक क्या की है, उस 4 में से एक उसने ऑलरेडी बता दी सीईओ, और 3 जो थ्योरी के अंदर थी उसको उसने अलग रख ली और उसे कहा वो आप सजेस्ट कर दें. तो एक्चुअली 4 हैं. तो हमारे पास अब देखिए ये 1.5 तो बहुत ही आसान है क्योंकि ये तो केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है. मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक बेटा, मैं ये इसको अगले सेशन में मैं करूंगा. एक बच्चा अगर सिर्फ सवाल के ये हिस्से जो है ना, जो आइडेंटिफिकेशन करनी है केस स्टडी के अंदर फैक्ट निकाल के सामने रख रहा है, अगर सिर्फ वो भी अच्छी तरह कर लेना तो वो पासिंग मार्क्स के बहुत नजदीक पहुंच जाता है. वो अगर 50 नहीं तो वो लाजमी 40 के पास पहुंच जाता है. और जो बच्चे 40 में रह जाते हैं ना, वो एक्चुअली उससे आगे कुछ भी नहीं करते, वो उसको कंक्लूसिव नहीं बनाते, वो सिर्फ फैक्ट तक रहते हैं, उसके आगे उसको कर नहीं पाते. तो एनीवन इफ with all due respect is somewhere between 40 and 30, they are just doing one thing, just getting the facts out. They are not doing what is required by the question. अब आइए देखें वो क्या है, सीईओ की क्या है. पहले देखें यहां पर, सीईओ इज रेफरिंग टू डुप्लीकेट इज एग्जिस्टिंग ब्रांड आइडेंटिटी ऑनलाइन. वो कह रहा है जो इस वक्त हमारे पास ट्रेडिशनल ब्रांड नेम है ना, इसी को कैरी कर दो, इसी ब्रांड को ले जाओ आगे. आपने कभी बीबीसी देखा है? एक पहले बीबीसी अलग था, अब देखिए उसके बीबीसी के कितने चैनल्स हैं. पॉडकास्टिंग का अलग है, फेसबुक का अलग है. उन्होंने अपने ब्रांड को डुप्लीकेट नहीं किया, उन्होंने हर एक के लिए एक नया सब्सिडरी ब्रांड साथ पैरेलल क्रिएट कर दिया. लेकिन डुप्लीकेट क्या होता है, उसी ब्रांड नेम को आगे कैरी कर दो, उसमें कस्टमर को कोई डिफरेंशिएशन नजर नहीं आती, वो उसी ब्रांड नेम को कैरी करते हैं. दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, जस्ट डुप्लीकेट योर एग्जिस्टिंग ब्रांड. ऑनलाइन ऑपरेशंस के लिए कोई एक डिफरेंट ब्रांड क्रिएट ना करो. अब दूसरी ऑप्शंस क्या थी, पहले इसको जरा डिस्कस कर ले. सीईओ सजेस्ट डुप्लीकेटिंग द एग्जिस्टिंग ब्रांड आइडेंटिटी would be effective as developing, gaining recognition of new brand identity, would involve time, skill and cost. वो ये कह रहा है कि डुप्लीकेट ब्रांड इसलिए आसान है कि हम ऑलरेडी ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है, एक नया ब्रांड एस्टेब्लिश करने में वक्त भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी, और अनसर्टेनिटी भी है, क्या कस्टमर उसको डिफरेंशिएट कर पाता है या नहीं, कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं. तो देखो मैंने क्या कहा था शुरू में, डिस्कस में है, उसके अच्छे पहलू और उसके बुरे पहलू सामने ले आओ. कंक्लूसिव नहीं बनाना यहां पर, इसको यहीं तक रखना है. डिस्कशन के वक्त आप कंक्लूसिव नहीं बनाते. फिर देखते हैं व्हाट इज डुप्लीकेट ब्रांड. जो आपका ऑलरेडी ब्रांड नेम है उसको कैरी करो. फायदा क्या है, अगर पहला ब्रांड रिकग्निशन है तो कस्टमर उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा. प्रॉब्लम यह है कि डुप्लीकेट अगर कस्टमर ने आइडेंटिफाई ना किया तो फिर हमें इशू आ सकता है, क्योंकि कस्टमर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता तो फिर हमें उसकी रिकग्निशन में प्रॉब्लम आएगा. नया ब्रांड लाने में क्या कबाहत है कि उसमें वक्त लगेगा, उसमें कॉस्ट लगेगी. तो आसान स्ट्रैटेजी क्या है कि हम उसको डुप्लीकेट कर दें. अब दूसरी हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं,
3. Adopt traditional branding, that is, extend the existing brand by creating slightly different version of it. That's what BBC has done. एक slightly different version लेकर आओ. जैसे BBC पॉडकास्टिंग है, BBC ऑनलाइन है, उसमें एक स्लाइड सी चेंज लाकर उसको इंट्रोड्यूस कर दो. ये डुप्लीकेट नहीं करना. इट्स अ वेरी स्लाइड चेंज इन द एडिशनल ब्रांड. एम्फेसिस उस पर मेन पर ही रहेगा पोर्शन, दैट इज BBC. दूसरा क्या है? को ब्रांडिंग. व्हाट इज को ब्रांडिंग? पार्टनरशिप विद एन एग्जिस्टिंग ब्रांड. गो इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद एन एग्जिस्टिंग ब्रांड. इसमें क्या है? आपको एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मार्केट मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑलरेडी बुक स्टोर और ई लाइब्रेरी है, उसके साथ जाके आप को ब्रांडिंग कर लें, उसके साथ को ब्रांडिंग करें, उसकी जो रिकग्निशन है वो आप स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू उसके बेनिफिट हासिल कर सकेंगे. तो पहली ऑप्शन क्या है बेटा ई मार्केटिंग में? डुप्लीकेट योर ब्रांड, वेरी डिफिकल्ट. सेकेंड, go for adopted traditional branding. What is adopted traditional branding? Launch a brand with a very slight change. Third is co-branding. Go into a strategic alliance with an already existing related brand. ये नहीं कि मोटरसाइकिल वाले जाके उसके साथ co-branding कर लें, एक related brand के साथ आप उसकी co-branding करें. तीसरा क्या है? Create a totally new brand. This is probably going to be most challenging, very expensive, but this is probably with the maximum benefit, but this is going to be expensive and challenging. तो बेटा 4 ऑप्शंस क्या हैं ई ब्रांडिंग में हमारे पास? पहली ऑप्शन क्या है? डुप्लीकेट. दूसरा क्या है? ट्रेडिशनल ब्रांडिंग, वेरी स्लाइट चेंज. तीसरा क्या है? को ब्रांडिंग, एंटरिंग इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद अ रिलेटेड ब्रांड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. तीसरा क्या है? दैट इज टू लॉन्च अ न्यू ब्रांड. Is e-branding clear to my students? बोलिए, बोले बाबा बेटा, बोले बोले बोले. सॉरी, फिर से बोले. जी देखिए, मैंने कहा BBC पहले था, उसमें लेके आए BBC ऑनलाइन. फिर से बोले. BBC फूड, हाँ. नहीं देखिए, BBC फूड इज अ टोटली न्यू ब्रांड. BBC ऑनलाइन स्लाइटली चेंज किया, पहले सिर्फ BBC था, अब BBC का वर्ड हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक स्लाइट चेंज कर दी हमने और अपने ब्रांड को आइडेंटिकल हमने डुप्लीकेट नहीं किया. कस्टमर को BBC पे रिकग्नाइज भी करवा लिया और उसके लिए स्लाइटली चेंज ब्रांड भी इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये टोटली न्यू ब्रांड नहीं है क्योंकि उसमें हमने एडिशनल एग्जिस्टिंग ब्रांड का नाम यूज किया है. अगर हम इसको यहां पर बिल्कुल एक डिफरेंट नाम से इसको लॉन्च करते जिसमें BBC का जिक्र ना होता, तो देन दैट वुड हैव बीन अ टोटली न्यू ब्रांड. एडिशन, ये जो हमने अडॉप्टेड ब्रांडिंग की है, इट्स अ वेरी स्लाइट चेंज जिसमें एग्जिस्टिंग ब्रांड का रिकग्निशन भी आए और कस्टमर को एक स्लाइट चेंज भी फील हो जाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी देखिए, इसमें यह ना कि आप जैसे वो पब्लिशिंग वाला लेकर आ रहे हो, तो अपने पब्लिशिंग ब्रांड को वहाँ रखो. आप बेशक ले पब्लिशर्स ऑनलाइन, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, उसमें एक छोटा सा चेंज लाकर कस्टमर को ये बता दो कि वही ब्रांड है जिसने अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड किया. ठीक है बाबर? या सर, आपको बेटा आप लोगों को क्लियर हुआ? ओके. ये पाकिस्तान किसके ओरिजिनल? ये नई कैसे हो गई? पहले इस तरह नहीं लिखते थे. ये तो ब्रांडिंग नहीं है, ये तो एक्चुअली उन्होंने ब्रांडिंग की है, नाम तो वही है. ब्रांडिंग, दे आर ब्रांडिंग, दे गेटिंग इट recognized. I will not say that this is they have created new brand, they are getting it recognized. बट मैं यहाँ पे खड़ा होकर इसकी ब्रांडिंग पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन अदर थिंग. ओके, नाउ द की स्ट्रेटेजीज. नाउ अब सवाल क्या कह रहा है?
The key strategies for commercially leveraging big data include. पहले तो आप में से कोई मुझे ये बताए, what do you mean by this word leveraging? Lever, leverage. Financial management में बहुत बड़ा concept है leverage का. What is leveraging? Okay, physics पढ़ी भी आप लोगों में से किसी ने? उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लीवर था. What is lever? Lesser force, greater result. अब गाड़ी को हाथ से उठाना चाहे नहीं उठा सकते, लेकिन वो जो गाड़ी का लीवर है बड़े आराम से एक शख्स जरा सी फोर्स से ज़्यादा आउटपुट हासिल. तो जहाँ पर आप मिनिमम रिजल्ट से ग्रेटर आउटपुट यूज़ करते हैं वहाँ हम लेवरेज का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. तो यहाँ क्या है? लेवरेजिंग, गेटिंग अ ग्रेटर आउटपुट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बिग डेटा. अब बिग डेटा क्या है बेटा? बिग डेटा है कि आज हम जो जिस स्पीड से डेटा हासिल कर रहे हैं, जितनी वॉल्यूम का डेटा हासिल कर रहे हैं, जितनी वैरायटी का डेटा हासिल कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स और डेटाबेसेस हैंडल नहीं कर सकते. अब टेराबाइट्स भी खत्म हो गए, पीटाबाइट्स में आ गया डेटा. कहां पहले गीगाबाइट्स में था, फिर टेराबाइट्स में आए. अब ये डेटा इतनी वॉल्यूम. टेक द एग्जांपल ऑफ फेसबुक. कैन यू इमेजिन द डेटा दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द यूजर्स ऑन द डेली बेसिस? इज दैट डेटा लॉस्ट? नो, दैट डेटा इज बीइंग स्टोर्ड समवेयर. हजारों लाखों सर्वेस चल रहे हैं उसके ऊपर. सिमिलरली ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर, it's a huge volume of data which is being created by especially social media. तो big data concept क्या है? Today we are gathering a huge volume of data which the traditional softwares and databases cannot handle. We need new technology. We need extended databases. We need extended storages like cloud to store that data. And don't forget, not only storage, we need special technologies to study that data, to sort that data, to analyze that data, and to use it for the company's benefit. Now that concept is called as big data. ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ, what is the concept of big data? Big data concept ये है कि आज की इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी वॉल्यूम, बहुत तेज वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा क्रिएट किया. 4 V's: वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी में डेटा क्रिएट कर रही है. जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर और डेटाबेसेस हैं वो इसको हैंडल नहीं कर सकेंगे. जस्ट गिव द इमेजिनेशन ऑफ फेसबुक. हाउ मच डेटा द यूजर्स आर जनरेटिंग, इंफॉर्मेशन जनरेटिंग ऑन द डेली बेसिस. हाउ मच डेटा यू कैन जनरेट इफ यू थ्रो अ क्वेश्चनर ऑन द फेसबुक. विच कलर ऑफ द कार डू यू वॉन्ट? What facilities do you want in a car? In a flash of eye or a very short time, velocity, you can create a huge volume, variety and velocity of data. अब इसको सिर्फ स्टोर करने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसको स्टडी करने का, इसकी सॉर्टिंग का, इसमें से रिलेशंस को डिटेक्ट करने का, किस इंफॉर्मेशन का किससे ताल्लुक है, उसको यूजेज का प्रॉब्लम है. Now that huge, the whole concept is called as big data. समझ आई बात? ये जो आपका चैप्टर के अंदर एंड पर दिया गया ना, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें से टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं. Don't forget to study this big data. Don't forget to study your artificial intelligence. Although हम इन 3 दिनों में जो रिवीजन कर रहे हैं, 4 दिनों में ये सारे कवर हो जाएंगे, लेकिन इनमें से लाजमी इस लास्ट पोर्शन में से क्वेश्चन आते हैं. इज द बिग डेटा कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए. ठीक है, तो इसकी अब की स्ट्रेटजीज क्या है? सबसे पहले इसका है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? Organization must understand
उसके अंदर जो लोग हैं, स्पेशली जो आईटी में इन्वॉल्व हैं और जो डेटाबेस में इन्वॉल्व हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बिग डेटा. They must understand how to make use of this big data. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा. टेस्मार्ट एक डिपार्टमेंटल स्टोर है. उन्होंने अपने जो भी डेटा अवेलेबल था सेल्स का, जो कस्टमर्स खरीद रहे थे, उससे एक डेटा गैदर किया कि whenever the parents are buying product A for their children, they are somehow buying product B. उनको नहीं मालूम था इसके अंदर क्या रिलेशन, ऑफ अपेरेंटली उनको इसमें कोई रिलेशनशिप नज़र भी नहीं आ रहा था. बट बिग डेटा एनालिसिस ने उनको ये बताया, कई जो वॉल्यूम ऑफ डेटा, कि देयर इज सम रिलेशनशिप. व्हेन द पेरेंट्स आर बाइंग प्रोडक्ट ए, दे आर ऑल्सो बाइंग प्रोडक्ट बी. अब कोई भी कंपनी जो उन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, उसके लिए क्या काम है? उन प्रोडक्ट्स को किसी तरह इकट्ठा प्लेस कर दें, एक जगह पर ले आए, ताकि कस्टमर उसको एक जगह से खरीद सके, बजाय इसके कि डिफरेंट शेल्फ प्लेसेस पे रखा हो. तो पहला क्या है? देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज दिस बिग डेटा. दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द यूटिलिटी ऑफ दिस बिग डेटा. और उसमें से हम देखें कि हाउ फार वी कैन यूज दिस डेटा फॉर द बेनिफिट ऑफ द organization. We must use it for performance management. पहली strategy ये है, we must understand the utility of big data and use it for improving the performance of the organization. The second is data exploration. Strategy है कि सिर्फ data gather नहीं करना, उसकी exploration करें, उनमें relationship develop करें, देखें किस data में आपस में correlations हैं, और उस correlation से फिर को देखें किस तरह हम इसको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर हासिल करते हैं. पहला था अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस. दूसरा है नाउ एक्चुअली एक्सप्लोरिंग दैट डेटा. तीसरा क्या है? दैट इज डिसीजन साइंस. नाउ अब उस डेटा को आपने इस्तेमाल कर लिया, कोरिलेशन. नाउ यू गॉट टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा. और चौथा हमारे पास तीन है बेटा यहां पर: परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, then you have data exploration, and then we have decision science. फिर इसको conclude करेंगे. 4.5 marks, 3 points. पहला, create an understanding of big data within your organization. The people must know that there is big data available. There bulk of information. You must recognize the importance. Just don't start ignoring the data. Second, now start exploring that data for your benefit. किन चीज़ों के दरमियान कोरिलेशन, जैसे मैंने अभी आपको टेस्टमार्ट की एग्जांपल दी, उनके दरमियान कोरिलेशंस को डेवलप करो, रिलेशनशिप्स को डेवलप करो. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट यू मस्ट देन टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा. बेस योर डेटा ऑन दैट बिग डेटा अवेलेबल. ये तीन स्ट्रेटेजीज आपने डेवलप करनी है फॉर गेटिंग द लेवरेज आउट ऑफ बिग डेटा. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डेटा एक्सप्लोरेशन, एंड देन decision science. Is the point clear? Now, question number 6. This is a very interesting case study regarding the ethics. And they usually, beta, throw away prices of marks hain yaar. Simple common sense, although I say common sense is a sense which is not very common. But even then, ट्रस्ट मी, कोई ऐसी इसके रॉकेट साइंस नहीं है. उसके सामने पड़ा होता है व्हाट इज द एथिकल इशू. हमें सिर्फ मॉडल का पता होना चाहिए कि मॉडल कौन सा है और उसके स्टेप्स क्या हैं. आइए ज़रा प्रॉब्लम पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या है. द फाइनेंस मैनेजर इज करंटली ऑन अ 3 months probation. जिस कंपनी में वो है, दिस इज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स. वो जो फाइनेंस मैनेजर है, he has previously worked for ABC Limited, which was a glass manufacturing unit. वो इस वक्त एक कंपनी को ज्वाइन किया उसने, जिसके मुतालिक सिनेरियो है, और वो 3 months की प्रोबेशन में है, और वो आया एक कंपनी से जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में थी. His last assignment in ABC
was determination of a bid price for the potential acquisition of PQR Limited, a company which is engaged in the business of glass manufacturing. वो जो previous employer था उसने लास्ट ये काम की थी कि उसने बिड एक प्रिपेयर कर रहा था उस कंपनी को खरीदने के लिए. अब क्या हुआ, वो XYZ कंपनी में आ गया जहां वो प्रोबेशन पर है. XYZ is also considering to acquire PQR. देखिए अब कॉमन सेंस प्रिवेल कर रही है. उसके पास वो बिड प्राइस क्या थी पता होगी, यहां पर आ रहा है, अब उसे पता है कि अब उसने उसको एक्वायर करना है. So XY is considering to acquire PQR under a strategy to diversify its business. The CFO has also informed him that they know that there is one more bidder. CFO को ये पता है कि एक बिडर है, कौन है उसे नहीं पता, लेकिन वो जो आदिल फाइनेंस मैनेजर उसे पता है वो कौन है. That there is no one more bidder interested in the acquisition of PQR but does not know its name. The CFO has informed the finance department staff shall be eligible for a bonus subject to a successful acquisition of PQR. कर दिया उसने इंटरेस्ट क्रिएट. उसने कहा जी अगर आपकी भेजी हुई बिड कामयाब हो गई तो आपको बोनस भी मिल जाएगा. नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, अब बड़े आराम से कॉमन सेंस से हमें समझ आ गया एथिकल इशू कहाँ है, ये तो समझ आ गया. अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है. Advise how Adil may apply the ethical model based on threats and safeguards in the above situation. Last chapter 20 में ethical resolution के अंदर ये मॉडल दिया गया जो बताता है कि हमने ethical issues को resolve कैसे करना है, और ये बार बार टेस्ट हो रहा है. what are the model for ethical resolutions. अब आइए देखें what are the steps of this model. First is define the issue. अभी हम बाद में देखते हैं, सिर्फ स्टेप्स पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं. The first is first define कि ethical issue है क्या. Second, identify the threats to compliance with ethical principles. Threats क्या है उसके साथ उसको आइडेंटिफाई कर दो. Third, then assess the significance of the threat. How important are the consequences अगर वो उसने compliance ना की. And fourth, applying the safeguards. वो अभी हम सारे देखते हैं. And the fifth is taking the necessary actions. So 5 स्टेप है बेटा यहाँ पर. पहला क्या है, define the issue. Second, identify the threats to compliance. जो इन्होंने जो भी मैं नाम भूल रहा हूँ, IFSC, इन्होंने एथिकल कोड्स डिफाइन किए हुए अकाउंटेंट्स के, जिसमें आप देखेंगे इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये वो कौन से थ्रेट्स हैं जो हम जिसको एक्सपोज हो जाएंगे. थ्रेट, असेस द सिग्निफिकेंस, कितने सवेयर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. फोर्थ, अप्लाइंग व्हाट सेफगार्ड्स दैट फाइनेंस मैनेजर कैन अप्लाई टू सेफगार्ड अगेंस्ट दोस थ्रेट्स. एंड द लास्ट इज टू व्हाट नेसेसरी एक्शन ही शुड टेक अगेंस्ट दोस सेफगार्ड्स. ठीक है, तो ये मॉडल हमें 5 स्टेप दे रहा है इस प्रोसेस का. और जैसे मैंने ये कहा कि जो एथिकल के 3 चैप्टर्स हैं, इसमें से जो तीसरा चैप्टर है वो बात कर रहा है प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग पर, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहले दो जो बहुत थ्योरेटिकल है. अब आइए इशू क्या है. इट इज़ वेरी क्लियर कि जो पहली कंपनी थी ABC, वो भी ग्लास में थी, और जिसको वो खरीद रहे हैं वो भी ग्लास में थी. वो सेफ लाइन है. उसके लिए इसकी सिग्निफिकेंस एक्विजिशन की बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू फॉर दिस कंपनी XYZ, क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन में आती है, वो एक्सपेंशन में आती है, तो उसकी इंप्लीकेशन कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है. अगर यहां पर वो डिस्क्लोज कर देता है तो देयर आर हैवी कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द कंपनी ABC. इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, ये देखना कि जो इशू है वो पहले जिस कंपनी के हम बात कर रहे हैं उसके वो आइडेंटिकल बिजनेस है, उसमें थ्रेट्स ज़्यादा हो सकते हैं, और यहाँ इसकी डाइवर्सिफिकेशन में आ रहा है. तो पहला काम है कि हम उस एथिकल इशू को डिफाइन कर दें. फिर क्या है,
Identify the threats to compliance. जरा देखिए पहला क्या है? Integrity. What is integrity? Adil has to be straightforward and honest. He has to declare that he knows few things. He has to declare what is exactly what he has been doing. He has been preparing the bids for the other company. So integrity अगर आपको याद है तो integrity is to be straightforward and मैं इसकी अगर एग्जांपल दूं आपको, फॉर एग्जांपल हम एक शख्स को हायर कर रहे हैं और उसके पैनल पर देयर इज एन अकाउंटेंट आल्सो सिटिंग इन दैट पैनल टू सिलेक्ट दैट पर्सन. हमें यह मालूम है कि हमारी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी मशीनरी आनी है, उसकी इंस्टॉलेशन होनी है, और इंस्टॉलेशन में अभी और इसकी कमर्शियल ऑपरेशन में तकरीबन 2 से 3 माह लग सकते हैं. हम उस शख्स को सिलेक्ट करते हैं और वो शख्स ये कहता है कि जी मैं 3 महीने वेट नहीं कर सकता, मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं कि मुझे लाजमी तौर पर मैक्सिमम 2 महीने में आई हैव टू बी ऑन जॉब. उसका जो HR मैनेजर है वो कहता है जी कोई मसला नहीं, हम आपको 2 महीने में हायर शुरू कर देंगे, हालांकि उसे पता है कि 2 महीने में ये पॉसिबल नहीं है. ही इज हाइडिंग द फैक्ट्स. वो जो अकाउंटेंट बैठा है उसकी इंटेग्रिटी क्या है? ही मस्ट डिस्क्लोज, ही मस्ट टेल इट कि दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो यू चूज दैट ऑप्शन. इंटेग्रिटी इज टू बी ऑनेस्ट एंड डिक्लेयर व्हाट इज ट्रू. डोंट हाइड द फैक्ट्स. यहां उसकी इंटेग्रिटी क्या है? उसको बताना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में था आई वॉज वर्किंग ऑन दैट बिड. दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी क्या है? वी शुड नॉट बी बायस्ड इन आवर डिसीजन मेकिंग. We should make the right judgment on merit. We should not be biased in our decision making. तीसरा क्या? Confidentiality, very straightforward. And the fourth is the professional behavior. What is professional behavior यहाँ पर? किसी थर्ड पार्टी को जाके इन्फॉर्म करे, उससे ओपिनियन ले. Don't disclose the facts. But he must get the right opinion what could be done in this situation. Maybe he can go to, for example, somebody from ICAP or somebody, get an opinion what he should be doing when you have such ethical. That is a professional behavior without disclosing the confidential matters. तो 4 प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो उसके एट स्टेक है. इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज ही हैज टू बी ऑनेस्ट इन हिज ओपिनियन, उसमें बायस नहीं होना चाहिए. थर्ड इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड थर्ड इज द प्रोफेशनल बिहेवियर. अब सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि बेटा अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता और बाद में XYZ कंपनी जिसमें वो भी प्रोबेशन पर है डिस्क्लोज हो जाता है, डू यू थिंक उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे? बोलिए. अभी वो डिस्क्लोज नहीं करता, हाइड करता है. क्यों? उसका पर्सनल रिवॉर्ड उस पर डिपेंड कर रहा है. वो हाइड कर लेता है और बाद में वो डिस्क्लोज हो जाता है और उसके CFO को पता चल जाता है कि जी वो उस कंपनी में काम कर रहा था जहां उसको पता था उसके बिड की प्राइस क्या है, जो भी है. डू यू थिंक देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिम? what it possibly could be? Yeah, I could lose the job because it's a matter of confidentiality. If he can leak the confidentiality with that company, he is likely to do the same with your company. So he may lose the job. So there are very serious implications. And not to forget, there is a problem of reputation. Then, applying the safeguards. What are the safeguards? सबसे पहला उसका safeguard क्या है? He must not disclose XY confidential, और किसी भी को उसको disclose ना करे, उसके benefits को उसको किसी को भी disclose ना करे about the XYZ. The first safeguard is that he must not be discussing those confidentials to anyone. What is the second one? Find another member of an ICAP or any other member, get an advice, maybe a lawyer, get an advice what he should be doing in this concern. He is exposed to ethical issues. He knows the consequences. He should know how I should place a safeguard. First safeguard is keep the mouth shut. Second is get a good opinion from anyone. Third is, that is now
without declaring the conflict of interest to CFO, explaining that he cannot work in respect of this acquisition. Now he has to be straightforward and he say, okay, I cannot work on this, but if he's forced to know you should do it, the better thing is to resign. That is a very ultimate action, but that is probably the ultimate that he has to do, that he has to resign. So let me just sum it up now. Beta, what are the safeguards? First, don't disclose. Second, get a good opinion from any other member, lawyer, regarding the consequences. Third, clearly declare that he cannot work because there is a conflict of interest. He cannot work on that project. But if he is still forced by the CFO to work on it, then the option left is to resign, because that resigning will also fall under the category of his safeguard. Have I made my point clear? Okay. And then finally, taking the action, that is, he can approach the compliance committee, risk committee, or the CEO, or even the non-executive director, because non-executive presence is to corporate governance. So he can ultimately go for action which may be referring that matter to, because somebody is forcing him to do it. So he can then go to the risk committee or others for that. Is the point clear? बोलिए बेटा, ठीक है. Now I will request को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हम कल करेंगे. अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कल आप इस पेपर को भी लेकर आइए और समर 22 और विंटर 21 का पेपर लेके आइए, क्योंकि आज शुरू में मैंने एक हिस्सा कवर कर लिया था ऑन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स. कल नहीं होगा, कल हम इसको दोनों को कवर करेंगे. मेरी कोशिश ये है कि जो 3 अटेम्प्ट्स SPM की आई हैं अभी तक, हम उनको तीनों को यहाँ पर कवर कर लें. ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग टुमारो एट 6 एंड वो दोनों पेपर्स को कल हम उसको डिस्कस करेंगे. गॉड ब्लेस. जी बेटा. सॉरी, क्वेश्चन स्ट्रक्चर वाज वेरी डिफरेंट. उसके कुछ केस स्टडीज हैं जो हो सकती हैं, लेकिन वो नहीं. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ICAW का बिजनेस स्ट्रेटेजी का पेपर है इस लेवल का, उसकी केस स्टडीज बजाय इसके कि DMS के उसको देखे, और वो इतने वाले पेपर का फॉर्मेट बहुत चेंज हो. Dear students, we have completed the first of 4th exam-focused revision sessions of CFAP 3 Strategy and Performance Measurement. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.ca students. For his devotion and dedication, please give sir a big round of applause. Sir, thank you so much. Students, CFAP 3 Strategy and Performance Measurement session will be conducted tomorrow on May 9, 2023 from 6 p.m. to 9:30 p.m. Till then, take care. Allah Hafiz.